Cisco SD-WAN, also that has been renamed, rebranded to Catalyst SD-WAN. So anytime anyone says like the Catalyst SD-WAN, it's basically the same thing as the Viptela Cisco SD-WAN. So they have rebranded like all the like products such as like SD-WAN has now become Catalyst SD-WAN. DNS Center, for example, has now become the Catalyst Center. The switching, the Catalyst switching and all that. So they have more like rebranded all these things into the single Catalyst solution. So we'll be covering this Cisco SD-WAN, also like known as Cisco Catalyst SD-WAN. It was like Cisco offers two types of SD-WAN. One is like Viptela based SD-WAN. The other solution that they offer, which is like Meraki based SD-WAN. Here, as a part of our content, we'll be talking about this Viptela based SD-WAN. We'll see here and there a few differences between the Meraki and Viptela, but mostly we will cover as per our content the Viptela based SD-WAN. So Catalyst SD, earlier we used to call it like Cisco SD-WAN Viptela. Viptela was the company who actually created the SD-WAN and this SD-WAN, and then Cisco acquired this Viptela SD-WAN solution, and we used to call it like Cisco SD-WAN Viptela. Then they a few months back, I guess like 3 to 6 months back, they announced that they will be rebranding, they will be renaming basically the SD-WAN solution. They have rebranded, they have renamed a few components inside the SD-WAN solution as well. So we will be covering this Viptela based SD-WAN or Catalyst SD-WAN in other name. So let me first show you the content that we will be covering, and then we will talk about it. So the content that we are going to cover as per the official Cisco website, Cisco SD-WAN 300, 415 is the exam code. They have a dedicated certification for this. The certification is like 300, 415. And this is like ENSDWI. ENSDWI. So this is the exam. This is the content that we'll be covering, like exam code 300, 415, implementing Cisco SD-WAN solution. Duration 90 minutes. Right. So if you want to be like SD-WAN certified, you have to take this exam. We will be covering like this exam, all the contents that are there in this curriculum. We'll be covering that, and you will get like all the things. You will get all these, knowledge based on the same. This is the content that we'll be covering as a part of our SD-WAN curriculum. These are the contents. This is the content that we'll be covering. Remember that Cisco recently changed the content of like all their certifications, including this SD-WAN as well. So remember that we will be covering ENSDWI, this 300, 415 version 1.2. This is the like exam code. From the exam point of view, this is what we will be covering. The older one was version 1.1, and before that we had version 1.0. So the current exam that we have, it is version 1.2, and we will be covering like everything from this content point of view. Just in a moment, we will see what content is covered. This exam of the Cisco SD-WAN solution includes the following thing. Like these are the things that we will cover as a part of the exam. And if I review the exam topics in detail, we will be able to see what points we are going to cover. As you can see here, this is the exam code that we have, 300, 415, ENSDWI version 1.2. Remember, it is version 1.2, not version 1.1. So implementing Cisco SD-WAN solution, enterprise SD-WAN solution version 1.2, 300, 415, 90 minutes exam, all the MCQ question, all the multiple choice questions we get here, right? No labs actually. So in the exam, from the exam point of view, you're not supposed to do any labs in the exam, just MCQ question, just drag and drop and those kind of things they will ask. So the entire SD-WAN curriculum is going to test you entire SD-WAN content. This classes, this like exam will test you on total 6 things. First is like SD-WAN architecture. Second is how well you know about the controller deployment. Third one is the router deployment. The next one is the policies. The next one is the security and quality of service. And the very last is the day 2 operation, which is more like the management operations that we have. Day 2 operations cover like backup of the like operating system, restoration, upgrade, and all those things. So
Like there are total 6 parts, there are total 6 things, 6 units, I would say, throughout which we will cover the entire our SD-WAN content. Right. I would advise you that you download this list in the PDF format and keep it with you so that you have a clear-cut idea like what topics are to be covered. And just in case if we miss something, then you can let me know that, okay, these topics we did not cover. Right. So very first thing that we'll talk about is the SD-WAN architecture. Like what are the architectural components in the SD-WAN, why we need SD-WAN, what is the requirement of the SD-WAN, what components are there in the SD-WAN. So from the architectural point of view, from the SD-WAN architecture point of view, what things are there in the Cisco SD-WAN Viptela solution? And we will talk about like these things, describe the SD-WAN architecture and the components. What is this orchestration plane? What is this management plane, control plane, TLOC, routes, data plane, multi-region fabric, MRF, we call it. Like this is a new thing that they have included. And currently, like Cisco SD-WAN solution is getting like sold based on this multi-region fabric concept. We'll talk about it. Right. Then what devices are there that support the SD-WAN? What is this? How can we extend our SD-WAN to the cloud delivered services, software as a service, infrastructure as a service, co-location center? What if we have multiple cloud options? So multi-cloud. So we will talk about like this at the very end. With the practical, although they say that you only need to know from the theory point of view, but we will see how much labs we can do. We will do the labs regarding the same as well. So this is the very first thing that we will cover. This is the very in the very beginning, we will talk about the SD-WAN architecture, which will cover 20% of your entire content from the exam point of view. Right. So 20% of the content is from the SD-WAN architecture. Once we are done with the basics of the SD-WAN, which will take, I guess, we'll see the days just in a moment. So 20% architecture, then the controller deployment, how to deploy the controller, describe the controller cloud deployment, describe the on-premise deployment, configure the certificates and the device. So ideally, like we don't need to worry about how actually we do the deployment of the controller onto the cloud or on premises. We don't have to do it. We just need to know how it is done. Right. But what we will do, when it comes to on-premise deployment, I will show you like how one of the controllers such as vManage, such as vSmart, I will show you like how we can deploy that in the virtualized ESXi environment. So as per our official curriculum, as per our official content, we don't need to worry about how from the lab point of view. They're not going to ask you to deploy any like controller in the lab. But you should know the concepts behind like the cloud deployment of the SD-WAN controller and the on-prem deployment of the SD-WAN controller. So this we will do. The lab that you will get there, the controllers are already deployed, so you don't need to deploy the controller. But as a part of our theory classes, as a part of our curriculum, we will see. I will show you like how the controllers are deployed in a virtualized ESXi environment. What configurations are needed to be done, we will talk about. And this we will cover. This we will cover. Like configure certificates and the device list, this we will cover. Like then troubleshoot the control plane connectivity, we'll talk about that. This is the second part, which is controller deployment. Then we have this third thing. Once we are done with the controller deployment, then we will talk about the router deployment. Right, in the router deployment, we will see we have two options actually. We have this thing called vEdge and we have this thing called cEdge. So vEdge router and the cEdge router deployment, right? So although Cisco is trying to more like remove the vEdge devices from the solution, and they have mostly deployed everything on the cEdge Cisco edge devices. So Viptela, like I said, Viptela was a company which originally designed this SD-WAN solution, this Viptela SD-WAN, and then Cisco acquired this solution. So this became like Cisco SD-WAN Viptela. They were using like this. They were using this VS device concept, right? We were using this VS device concept, and later on, when Cisco saw that okay, the vEdge is a Viptela operating system is a different completely operating system than the Cisco operating system, so they created their own SD-WAN operating system, which is like Cisco IOS XE SD-WAN. So that operating system, when we have installed on the devices, that one is what we refer to as the cEdge devices. So they are basically trying to
they have like included like only CS devices, but as a part of our content we will also see the onboarding of the VS devices, because still they are being used. They're not completely obsolete, so we will talk about both VH and the CH, right? So that is one thing. So configure the WAN-S deployment. How can we deploy the WAN-S devices? We will talk about that. What is this data plane? What is this OMP, TLOC, like the routing concepts, the HA, high availability, right? Multicast. We don't have to do it again, but describe. But I will show you. I will show you how to configure the multicast in SD-WAN and describe. This is a new thing that they have added in our 1.2 content, which is configuration groups, feature profiles, and the workflow. Right. So we will talk about this edge WAN edge router deployment. Right. So router deployment and the concepts related to the router deployment. You will do it in the lab as well. You will do the configurations of all these things in the lab as well. As soon as this part is done, as soon as this third unit, as soon as this router deployment part is done, we will have a complete reachability in our lab topology, right? So we will be able to ping and trace from the LAN to the LAN, from the LAN to the data center. We will have complete reachability up to this point, and then from the section number 4 and 5, these two sections focuses on policies like hub and spoke policy, prefer one transport over another transport, DIA, direct internet access, variety of control policies that affect the route, and variety of like data policies that affect the traffic forwarding. So control policies and the data policies, right? So we will talk about that. Then how we can implement these variety of policies to achieve VPN segmentation, different types of topologies such as hub and spoke, such as full mesh, partial mesh, application aware routing, DIA, all these things we will talk about as per our policy curriculum. So we have like, I guess, 15 to 20 policies we will cover as a part of our content. We will cover approximately 15 to 20 policies. Those policies will focus on the route, and those policies will focus on the data. I will just show you in a moment. Then we have security and quality of service. This again was not in our content earlier, but now they have included. Implement, they say describe, but we will implement it. We will do the configurations. The only thing we have to configure is this thing called service insertion. But and other features we just need to know, but we will do the labs. We will see like how much, like whatever features we can implement on our SD-WAN from the security point of view, such as application aware firewall, such as like IPS, such as URL filtering, all these things we will, AMP, SSL, and all these things we will talk about from the lab point of view as well. Then how can we integrate our cloud security, such as DNS security based on Umbrella? What is the secure internet gateway? We'll talk about like, this is the security part. This is 5.1, 5.2, 5.3. This is the security part. I'm not saying that we will be able to complete everything, but whatever we will be able to do, we will do it in the lab. Sir, For example, we will not do. Sir, I have one question. Yes. All this part is belonging to firewall. Then why we need the firewall then? If all the features we are in SD-WAN, then we don't need the firewall. Because of the limitations, like these features are just limited. Like it's not like you will get full-fledged URL filtering functionalities or full-fledged like IPS solution. They are trying to compete with those Palo Alto firewalls, Palo Alto SD-WAN solution, Palo Alto or Checkpoint or these other vendors that they have. They are trying to give us some security features on the S devices itself, so that you actually don't have a need to, you don't get a need to install a dedicated firewall. But these features are not as good as having a dedicated firewall. Honestly speaking, these are very limited in features. So we will see like what things we can do. Then you will get the idea that, okay, these features might be suitable for a small branch, small to maybe a medium branch, but for a large scale network, these features will not be very much suitable. So just the basics, just the basic features they have given on the box itself, on this CS device itself actually. So so that for a small branch, such as you have a
a branch where we have 20-30 users, like those users are accessing the internet, and so that like they don't require on that branch, we don't require to have a dedicated firewall. We can implement basic security feature right on the router. But these are not as good as having a dedicated firewall solution, dedicated like Cisco firewall, SD like this Palo Alto firewall, or any other firewall. Very limited. Then quality, improving the application user of experience, like quality of service and application quality of experience, app QoE. These are the topics like how to configure the quality of service and variety of quality of experience, app QoE, how to improve the application quality of experience by using by implementing this thing called TCP optimization, DRE algorithm, FEC, packet duplication, all those things we will talk about. Like this is like the more like fine tuning the application user experience. So this is like security and quality of service, 15%. And the very end, we have management and operations. 10% management and operation, like describe, authentication, monitoring, reporting from the vManage, monitoring related things, authentication and monitoring and reporting, same thing. How can we create the users and all? We will talk about that. Then API, a little bit of like API. What is API? How can we interact with our vManage using the API? And at the very end, we have this thing called SWIM, Software Image Management. SWIM basically is a tool, just like if you want to upgrade the operating systems, you want to upgrade the controller images and all. So for that, like we don't need to go on the device itself. We can do it from the vManage. So what is this SWIM, Software Image Management? How can we upgrade the controller and the software images of the as devices from the vManage itself, right? So this is the day 2 operation. So total 6 things. Yes. Vaibhav. So it means, it looks like, sir, that the controller they are still using, they are same as they were using with the V edges, right? Although they are trying to move from V edges devices to the C edges. Yes. Okay. But see, they are trying to move from the VHS to CHS, but it can't be done like all immediately, right? So they are gradually going to move from the VHS to the CHS. And I have noticed that like previously, like I think like 2 or 3 months back, quite a lot of like VS devices ran into a problem because of a certificate issue, right? So like almost like a lot of one particular platform of the VS device ran into this certificate issue where the certificate got expired and none of these devices were up in any production environment. So and so they suggested like, okay, you fix the certificate problem and all that, and then you migrate from the VS to the CH. CH is more stable, this, that. These features that we have talked about, no, all these features are only on the CS devices, not on the VS devices. So they say that we are going to give you some additional features and all. So they will gradually move from the VHS to the CHS, 100%. But it's not like everyone has done, like everyone has migrated, everyone has moved from the VS to CH. So still like they have in the content, still they have like in the curriculum things regarding the VHS. We will do the same actually. A lot of these things are available, like a lot of these concepts are available only on the like CHS, not on the VHS. But yeah, as far as the upgradation of the VHS, upgradation of the CHS, monitoring, reporting is concerned, all that thing is done from the controller, which is our vManage. We'll talk about it. We'll talk about the controller. Okay. So this is the official content that we will be covering. By the end of this content, by the end of all these content, like all these units, you will be actually ready to take the exam. Of course, you have to go through the documents, you have to go through the official certification guide, you have to go to a few questions. But again, like once this content is done, you will definitely be ready to take the exam. पहले book के बारे में बात कर लेते हैं. So to complete this entire content, like ये जितने भी आपके 6 units हैं, इसको complete करने के लिए, we have one official book जो आपकी सिस्को की तरफ से है. सिस्को SD-WAN की जो आपकी बुक है वो कुछ इस तरीके से रहेगी. Let me show you. This is the official book for the SD-WAN. This book you will
ऑफ कोर्स आपके पोर्टल पे अवेलेबल रहेगी, आप पोर्टल से एक्चुअल में इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड दिस इज द बुक दैट यू विल रेफर टू फॉर द नॉलेज ऑफ SD-WAN। मतलब ये आपकी सिस्को सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपकी ऑफिशियल सर्टिफिकेशन गाइड है। ठीक है, ये आपको जो है मिल जाएगी। टोटल अगर हम बात करें तो हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करने हैं। 13 चैप्टर्स में आपका जो है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, कंपोनेंट्स, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, ऑनबोर्डिंग एंड प्रोविजनिंग, पॉलिसीज, centralized policy, control policy, data policy, application aware routing policy, localized policy, then security का एक ही चैप्टर है, इसी में सब कवर्ड है आपका। जितने भी हमने सिक्योरिटी के फीचर्स डिस्कस करे सब इसी में कवर्ड है। देन क्लाउड ऑन रैम्प कि हम किस तरीके से अपने SD-WAN को क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं। देन माइग्रेशन, डिजाइन, अब प्राइवेट क्लाउड में आपको किस तरीके से कंट्रोलर होस्ट करना है। तो मतलब ये 13 चैप्टर्स में आपका पूरा SD-WAN का जो कंटेंट है ये कवर रहेगा। तो ये आपको गो थ्रू करना है, आपको इस मतलब डॉक्यूमेंट से आपको गो थ्रू करना रहेगा, जस्ट इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर द बेटर नॉलेज ऑफ कंटेंट। तो जो भी हम रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करेंगे सब यहीं से होगा। ठीक है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे जो क्लासेस में कवर कराया जाए, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे जो आपको क्लासेस में कवर कराया जाए आप उसको जो है यहाँ से रेफर करो। ठीक है, कुछ क्वेरीज आए आप क्लास में पूछो, क्लास के बाद पूछो, क्लास के नेक्स्ट डे पूछो, आपकी चॉइस है। तो ये आपका टोटल कंटेंट है। 13 चैप्टर्स में हम इसको पूरा फिनिश करेंगे। रेगुलर बेसिस पे मैं कंटेंट यहीं से कवर करूंगा। देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है बुक उठाओ और बुक पे देखो कि हमने जो रेगुलर मतलब अपने टाइम पे कवर किया वो आपका कहाँ पे है, और आप उसको फिर डिटेल में रीड करो। तो ये आपकी ऑफिशियल बुक रहेगी जो आपको गो थ्रू करनी ही करनी है, जस्ट इन केस अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो या आप अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अगर आप SD-WAN इंप्लीमेंट करने वाले हो, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू वन ऑफ दिस बुक, सिस्को सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, डिजाइनिंग, डिप्लॉइंग, सिक्योरिंग योर नेक्स्ट जेन WAN विद सिस्को SD-WAN। राइट, तो ये आपको एक तो रेफर करनी है, ये बुक आपको मिल जाएगी, आप उसको रेगुलर बेसिस पे रेफर करोगे। सेकंड, क्या लैब्स कवर करेंगे पहले वो देख लेते हैं एक बार। तो ये है आपकी वो जो लैब्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो ये हमारा एजेंडा, जो हम क्या कवर करने वाले हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि आर्किटेक्चरल पॉइंट, वही सेम चीजें जो हमने वहां मेंशन करी है वो यहाँ पे हैं। तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें कवर करेंगे, उसके बाद कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट, राउटर डिप्लॉयमेंट, उसके बाद पॉलिसीज, उसके बाद सिक्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, उसके बाद आपका मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। 6 पार्ट्स में हमारा पूरा कंटेंट कवर होगा और इसी में आपकी मतलब मिक्स रहेगा थ्योरी और लैब का। तो क्या लैब कवर करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। टोटल जो लैब हमें कवर करनी है, सबसे पहला काम, सबसे पहली लैब हमारे पास रहेगी कि हमारे SD-WAN के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करना। SD-WAN में 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द SD-WAN component is what we refer to as the controller, and the second SD-WAN component that we have, these are the edge devices. तो कंट्रोलर और एज डिवाइसेस 2 कंपोनेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सो वी हैव टू एक्चुअली इंटरकनेक्ट दीज एज डिवाइसेस विद द कंट्रोलर। कंट्रोलर को एज डिवाइसेस से कनेक्ट करना है, रीचेबिलिटी बेसिकली प्रोवाइड करनी है। किस तरीके से आप अपने एज डिवाइस और कंट्रोलर के बीच में रीचेबिलिटी प्रोवाइड करोगे, कंट्रोलर से कंट्रोलर के बीच में, एज डिवाइस से एज डिवाइस के बीच में आप किस तरीके से रीचेबिलिटी प्रोवाइड करोगे, ये हमें देखना है। ये सबसे पहली लैब रहेगी। देन इंस्टॉलिंग द एंटरप्राइज रूट CA सर्वर, मतलब SD-WAN में, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्किंग में, SD-WAN में जो आपका ये काम होता है, जो आपका ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए, मतलब कौन सी डिवाइसेस आपकी वैलिड हैं, कौन सी डिवाइसेस आपकी ऑथराइज्ड हैं आपके SD-WAN नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, वो मतलब आपका जो सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन, CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन मतलब ऑथराइजेशन वगैरह करने के लिए सर्टिफिकेट अथॉरिटी की हम हेल्प लेते हैं। तो वी विल हैव टू इंस्टॉल सम CA सर्वर। तो किसी न किसी डिवाइस को हम एज अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी हम यहाँ पे वो करेंगे, कन्फिगर करेंगे, and we will generate the certificates, we will install the certificates as a part of our lab on the controller and on the edge devices। देखेंगे कि सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आपके सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल किए जाते हैं। ये हमारा एक लैब का पार्ट रहेगा, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। आजाद, यू आर नॉट ऑडिबल, जस्ट इन केस अगर आप कुछ कह रहे हो तो ऑडियो एक बार आप चेक करो, माइक सेटिंग्स आप चेक करो या चैट बॉक्स आप यूज करो मीनवाइल।
तो सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन का सीए का जो हम प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब आपका सर्टिफिकेट्स हमने इंस्टॉल कर लिए होंगे अपने कंट्रोलर्स पे, तो हमें अपने कंट्रोलर्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारे वी मैनेज के हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, उसके बाद ही सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर पाएंगे। वैसे ये तो बस ये बात है कि हम अपने नेटवर्क में कहीं पे सीए सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट सीए या कोई एंटरप्राइज सीए हम अपने नेटवर्क में इंस्टॉल करते हैं, जहां से हम सर्टिफिकेट्स वगैरह जनरेट करके अपने डिवाइसेस पे इंस्टॉल करें। राइट, तो हम अपने वी मैनेज हमारा एक कंट्रोलर है, जिसकी हम पहले CLI कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि हमें उसका GUI एक्सेस मिल सके। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ आवर फर्स्ट कंट्रोलर विच इज वी मैनेज, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ आवर सेकंड कंट्रोलर दैट इज वी बॉन्ड, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आवर थर्ड कंट्रोलर दैट इज आवर वी स्मार्ट। तो ये जो 3 कंट्रोलर हैं, इन 3 कंट्रोलर्स को हम एक्चुअल में एक एक करके सेटअप करेंगे CLI से। CLI कमांड लाइन इंटरफेस जो हमारे पास है, CLI को यूज करते हुए, जैसे अच्छा इसकी CLI एकदम जैसे सिस्को की CLI है ना, एकदम वैसे ही है, मतलब इफ नॉट एग्जैक्टली द सेम बट काफी हद तक आपके पास जो है सेम ही है। नहीं, आपको कंट्रोलर्स डिप्लॉय नहीं करना, आपको इस डिवाइस डिप्लॉय नहीं करना, वो ऑलरेडी डिप्लॉयड। उसके जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, ठीक है, बट वी डोंट हैव टू डिप्लॉय इट इन द लैब। हमारे कंटेंट में डिप्लॉयमेंट का कोई पार्ट नहीं है, तो प्रैक्टिकली वी डोंट हैव टू डिप्लॉय इट एक्चुअली। केवल और केवल हमें जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है उस पर फोकस करना है कि आपके कंट्रोलर पे, आपके इस डिवाइस पे क्या फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशंस आपकी करनी रहती है, दैट थिंग। राइट, तो वी मैनेज, वी स्मार्ट और वी बॉन्ड, ये 3 कंट्रोलर के नाम हैं। इनको हम जो है अपने कॉन्फ़िगरेशंस, हम इन पे अपना CLI कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इन पे सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे तीनों पे। रिमेंबर दैट वी मैनेज का ही आपका केवल GUI एक्सेस मिलेगा, यहीं से बैठ के आपको सभी चीजों को मैनेज करना रहेगा। आपको आपके वी बॉन्ड का या आपके वी स्मार्ट का GUI एक्सेस आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। केवल और केवल आपका जो वी मैनेज का आपको जो है ये GUI एक्सेस आपको मिलेगा, यहीं से बैठ के आप अपना सारा काम करोगे, सारा मतलब डे 0 से लेकर डे 2 तक सभी चीजों को आप यहीं से करोगे, और आपको जो है वी बॉन्ड का या वी स्मार्ट बाकी के जो कंट्रोलर्स हैं उनका GUI एक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। तो जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह अगर कुछ करनी होगी इन पे, तो आप CLI के थ्रू ही करोगे, इनका GUI आपको देखने को, ठीक है। तो हम कंट्रोलर्स को इनिशियलाइज करेंगे, कॉन्फ़िगर करने के बाद उनके बीच में रीचेबिलिटी बनाने के बाद उनपे हम अपना जो सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो करेंगे। जब तक आप अपने कंट्रोलर्स पे सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक आपके कंट्रोलर्स आपस में कनेक्शन नहीं बना सकते। इसीलिए हमें एक CA सर्वर की जरूरत है, जिसका काम है सर्टिफिकेट जनरेट कर करके डिवाइसेस को दे, ताकि हम उन डिवाइसेस पे सर्टिफिकेट्स को इंस्टॉल कर सकें। राइट, तो ये हम करेंगे अपने फॉर एग्जांपल कंट्रोलर्स के डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं पे मैं आपको बता दूं, वी मैनेज का जो नाम है वो चेंज होके आपका कर दिया गया है कैटलिस्ट SD-WAN मैनेजर, जस्ट फॉर द sake of like the new naming convention। जो आपका, जिसको हम वी मैनेज कहते थे, जिसको हम आपका विप्टेला, वी स्टैंड्स फॉर विप्टेला, जिसको हम वी मैनेज कहते थे, आपका दिस इज नाउ सिस्को कैटलिस्ट SD-WAN मैनेजर। तो वी मैनेज को हम कहेंगे कैटलिस्ट मैनेजर, मतलब मैनेजर बेसिकली, सिस्को SD-WAN कैटलिस्ट मैनेजर। वी बॉन्ड को अब हम कहते हैं, जो पहले विप्टेला बॉन्ड वी बॉन्ड था, इसको हम कहते हैं सिस्को मतलब कैटलिस्ट SD-WAN और आपका वैलिडेटर, कैटलिस्ट SD-WAN वैलिडेटर। और आपका जो वी स्मार्ट था, दिस इज नाउ सिस्को SD-WAN कैटलिस्ट कंट्रोलर, दिस इज नाउ नेम्ड एज कंट्रोलर। तो मतलब पहले नाम थे वी मैनेज, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट, अब नाम हो गया आपका मैनेजर, वैलिडेटर एंड कंट्रोलर। मतलब अपने काम के हिसाब से अब इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। मतलब वी स्मार्ट का काम कंट्रोलर का ही था, तो उसको अब नाम ही चेंज करके उसका कंट्रोलर कर दिया। वी बॉन्ड का काम ही था कि आपकी इस डिवाइसेस को वैलिडेट किया जाए इससे पहले कि वो आपके नेटवर्क को ज्वाइन करे, तो अब उसका नाम चेंज करके वैलिडेटर ही कर दिया। और आपका जो NMS है, जो नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन है, जहां से बैठ के आप सब मैनेजमेंट करोगे, दैट इज नाउ एक्चुअली नोन एज द मैनेजर। तो नेमिंग चेंज हो गई है, कुछ वो उसकी वो नहीं है, कुछ ऐसा कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ है, केवल नाम चेंज हुआ है बस।
तो वी मैनेज, वी बॉन्ड और आपके वी स्मार्ट का नेमिंग कन्वेंशन कुछ इस तरीके से रहेगा। तो कोई वैलिडेटर कहे तो समझ जाना कि वी बॉन्ड की बात हो रही है, कोई कंट्रोलर कहे तो समझ जाना कि आपके वी स्मार्ट की बात हो रही है, और मैनेजर ऑफ कोर्स आपका वी मैनेज ही रहेगा, राइट। सो जैसा हमने डिस्कस किया कि इट इज नाउ कैटलिस्ट एज द वैन, सो दिस इज कैटलिस्ट एज द वैन सोल्यूशन, जहां पे आपके नेमिंग कन्वेंशन को इस तरीके से चेंज किया गया। क्वेश्चंस बताओ, कुछ पूछना है? Sir, हाँ जी। sir, is this the way that we have to set up first we manage, then we bond and we smart, or like we can do it anyway? नहीं, सेटअप करने के लिए देखो, आप इंस्टॉलेशन तो कैसे भी कर लो, बट बात आती है जब हम बूट की बात करते हैं कि पहले किसको बूट करोगे या पहले किसको कॉन्फ़िगर वगैरह करेंगे, तो नो डाउट पहले हम क्या करते हैं, अपने वी मैनेज को सेटअप करते हैं, उसके बाद वी बॉन्ड को, फिर आपके वी स्मार्ट को। बट ऐसा कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आप कर दो सभी पे, बट क्योंकि GUI एक्सेस तो आपको केवल वी मैनेज का मिलेगा, तो करना तो आपको इवेंचुअली सारा काम वी मैनेज से ही पड़ेगा। Right. तो वी मैनेज पहले आपको ऑनबोर्ड करना है, सबसे पहले आपको वी मैनेज ऑनबोर्ड करना है, उसके बाद आपका मन है पहले वी स्मार्ट करो, पहले वी बॉन्ड करो, आपकी चॉइस है। बट अल्टीमेटली अभी आप पढ़ोगे आगे, अल्टीमेटली आपका जो वी बॉन्ड कंट्रोलर, वी बॉन्ड ऑर्केस्ट्रेटर होता है, वी बॉन्ड वैलिडेटर जो आपके पास होता है, अल्टीमेटली यही सभी डिवाइस को सबसे पहले ऑथेंटिकेट करता है और आपके वैलिडेट करता है और आपके नेटवर्क में ज्वाइन करने की परमिशन देता है। तो हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो वी मैनेज के बाद अगला हमें वी बॉन्ड इंस्टॉल करना चाहिए, फिर वी स्मार्ट इंस्टॉल करना चाहिए। बट ऐसा सच कुछ मतलब जब तक आप वी बॉन्ड इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आपकी डिवाइसेस ज्वाइन नहीं कर पाए, दैट्स इट। बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। Okay, sir. Thank you. ठीक है, तो अगेन मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको कुछ मतलब ऐसा ना रहे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं। हम कंट्रोलर्स लैब में एकदम वो नहीं करेंगे, मतलब इंस्टॉल नहीं करेंगे, पहले ही बता रहा हूं। हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे अपने कंट्रोलर पे, हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे अपनी एज डिवाइस पे, अगला जो हमारा टास्क रहेगा। वी डोंट हैव टू इंस्टॉल अ कंट्रोलर, वी डोंट हैव टू इंस्टॉल एन एज डिवाइस इनटू द लैब। ऑलरेडी जो आपको लैब दी जाएगी उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके लैब में ऑलरेडी कंट्रोलर्स इंस्टॉल्ड हैं, आपके लैब में ऑलरेडी मैनेज डिवाइसेस इंस्टॉल्ड हैं, आपको बस उन पे कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, रीचेबिलिटी बनानी है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर कंटेंट कि हम किस तरीके से अपने एज डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं या किस तरीके से हम अपने कंट्रोलर्स को इंस्टॉल करते हैं। वो डिस्क्राइब वाला पार्ट है, आपको नो डाउट डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी जाएंगी। मैं अपने एंड से करके दिखा दूंगा, बट आप नहीं कर पाओगे। आपको केवल देखना है कि क्या करना है, और कभी आपको अगर प्रोडक्शन में करने का मौका मिलेगा तो फिर आप करना। Is there any dcloud option is there for? You can't deploy the controllers even on the dcloud. dcloud पे आपकी जो लैब है वो आपकी अगेन बेसिक्स में स्टार्ट होती है, वहां पे भी आप डिप्लॉय नहीं, राइट। तो कंट्रोलर्स डिप्लॉय कर लेंगे, उसके बाद हम अपने वैनेज डिवाइसेस को डिप्लॉय करेंगे, दोनों वीएज और सीएज। तो पहले वीएज डिवाइस को अप एंड रनिंग लेके आएंगे, रीचेबिलिटी करवा देंगे कंट्रोलर के साथ, एंड देन उसको रजिस्टर कर देंगे अपने वी मैनेज पे, मैनेजर पे। फिर सीएस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है, वीएज अलग तरीके से कॉन्फ़िगर होता है, सीएज अलग तरीके से कॉन्फ़िगर होता है। तो सीएच की जाएंगे, सीएच पे जाके कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, सीएलआई कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, उसको रीचेबल करवाएंगे अपने कंट्रोलर से, एंड देन हम रीचेबल करवाने के बाद उसको एक्टिवेट करवाएंगे, उसको रजिस्टर करवाएंगे अपने वी मैनेज पे। तो ये पार्ट हमारा प्रैक्टिकल रहेगा, नो डाउट। वीएच सीएच का ये जो ऑनबोर्डिंग का पार्ट है ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा। इंस्टॉल नहीं करेंगे, पहले ही बता रहा हूँ, हम केवल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, रीचेबिलिटी बनाएंगे, और रीचेबिलिटी बनाने के बाद हम उसको रजिस्टर कर देंगे। सर ये वी स्मार्ट का क्या रोल है? आगे आएगा वो, मतलब आगे हम कवर करेंगे, रोल्स एंड एवरीथिंग हम आगे कवर करेंगे। अभी हम ये कवर कर रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, देन मतलब जब हम कंटेंट अपना बिगिन करेंगे तो वहां पे इन चीजों का डिटेल में डिस्कशन रहेगा। ओके सर, राइट, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दीज 12 लैब्स, मतलब यहाँ तक कंप्लीट कंटेंट करते करते आपके जितने भी कंट्रोलर्स हैं वो सारे अप रहेंगे, आपस में उन्होंने कनेक्शंस बना लिए होंगे, जितनी भी आपकी एस डिवाइसेस हैं वो आपकी कंट्रोलर से रीचेबल रहेंगी, एक दूसरे से रीचेबल रहेंगी, उन्होंने तरह तरह के कनेक्शंस बनाए रखे होंगे। मतलब इन शॉर्ट इन 12 लैब्स के बाद आपकी जो है रीचेबिलिटी कंप्लीट हो गई हो। और उसके बाद हम देखेंगे SD-WAN का जो ट्रू आपके पास जो है यूज केस है, SD-WAN की जो ट्रू मतलब अगर हम कहें पावर है, वो हम अब आगे उसके बाद देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह मेन एडवांटेज आपके SD-WAN को यूज करने का क्या है, कि आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में n नंबर ऑफ आपकी ब्रांचेस हैं, n नंबर ऑफ आपके हेडक्वार्टर्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, सभी आपके आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है।
connected with the help of variety of transport such as internet, such as MPLS. हो सकता है आपने और अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सच एज 4G LTE और आपने अलग अलग तरह के अलग ट्रांसपोर्ट्स को यूज कर रखा हो, मेट्रो, इथरनेट एंड सो, डजंट मैटर। पॉइंट इज कि आपका जो डेटा सेंटर का एज डिवाइस है वो आपके ब्रांच के एज डिवाइस के साथ कनेक्ट है। अब क्या है कि जितनी भी आपकी वैनेज डिवाइसेस हैं, इन सभी वैनेज डिवाइसेस को हमें एक एक करके मैनेज करना पड़ता है। ऑल दीज वैनेज डिवाइसेस हमें एक एक करके मैनेज करना पड़ता है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल आपकी ब्रांचेस हैं, तो हर एक ब्रांच पे लगी हुई एक या दो वैनेज डिवाइस को एक एक करके मैनेज करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आपके पास रहेगा। और कल को अगर आपके पास सपोज अभी एट द मोमेंट आपकी 10-20 ब्रांचेस हैं, कल को आपने डिसाइड किया कि 20-30 ब्रांचेस आपको और सेटअप करनी है और आपको लगानी है, ठीक है, तो इवन दो आपकी सब आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, इवन दो आप बस केवल कॉपी पेस्ट ही करना चाहते हो, फिर भी आपको थोड़ा नई ब्रांचेस को सेटअप करने में, उनकी वैनेज डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने में टाइम लगेगा। तो SD-WAN सॉल्यूशन का मेन एम क्या है? SD-WAN सॉल्यूशन का मेन एम ये है कि जितनी भी आपकी वैनेज डिवाइसेस हैं, जितनी भी आपकी वैनेज डिवाइसेस हैं, उन सभी को हम एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के मैनेज कर सकें, उन सभी को हम एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के कंट्रोल कर सकें। ठीक है, थोड़ा और इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करें। तो जब आपने 10, 20, 30 ब्रांचेस, 40, 50 ब्रांचेस पे जब आपने अपनी वैनेज डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है या कनेक्ट करके आपको रीचेबिलिटी करवानी है, कुछ राउटिंग करवानी है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इंस्टेड कि हम मैन्युअली एक एक करके उन सभी एज डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगरेशन करें, व्हाट वी कैन डू एक्चुअली, वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स हमें अलाउ करते हैं, टेम्पलेट्स जो हमारे पास हैं ये हमें अलाउ करते हैं कि हमारी जो VS डिवाइसेस हैं या जो हमारी CS डिवाइसेस हैं, इनको हम एक ही जगह से बैठ के कॉन्फ़िगर कर सकें, नॉट अगेन वन बाय वन, एक एक करके नहीं, बट विद द हेल्प ऑफ दीज वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स। जो भी कॉन्फ़िगर करना है, जो भी फीचर आपको अपने वैनेज डिवाइस पे, वैनेज में दोनों आ जाएंगे, VH भी आ जाएगा, CH भी आ जाएगा, तो जो भी फीचर आपको अपने वैनेज डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, सच एज कुछ बैनर कॉन्फ़िगर करना है, AAA, BFT, OMP, राउटिंग, ये आगे राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, OSPF, BGP, EIGRP, कुछ भी आपको कॉन्फ़िगर करना है, आपके पास CLI का ऑप्शन तो है ही, साथ के साथ आपके पास ऑप्शन है कि आप इन सब चीजों को टेम्पलेट्स के साथ कॉन्फ़िगर करो। मतलब आप एक जेनरिक टेम्पलेट बना दो, उस टेम्पलेट में आपको जो कॉन्फ़िगरेशंस करनी है OSPF की, उसको मेंशन कर दो, और उस टेम्पलेट को आप अपने 50, 60, 100 डिवाइसेस पे आपने पुश कर दिया। तो हर एक डिवाइस को आपको एक एक करके कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, आपकी ये टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन सभी डिवाइसेस को एक बार में कॉन्फ़िगर कर देंगे। Yes, sir. Like SNMP, etc. काइंड ऑफ दैट, मतलब ये कुछ अलग प्रोटोकॉल यूज करता है, बट सिमिलर टू दैट। प्रोटोकॉल अलग रहेगा, इसमें हम SNMP यूज नहीं करेंगे, कुछ अलग प्रोटोकॉल है इस काम के लिए यूज किया जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव सेम है कि n नंबर ऑफ डिवाइसेस को हम एक जगह से बैठ के कॉन्फ़िगर कर सकें। और ऑफ कोर्स इस टेम्पलेट में आपकी वेरिएबल फील्ड्स हो सकती है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपकी 100 नंबर ऑफ डिवाइसेस सभी की आपकी जो है OSPF फॉर एग्जांपल, राउटर ID फॉर एग्जांपल आपकी सेम ही रहेगी, अलग अलग रहेगी सभी पे। सो वी कैन मार्क सर्टेन थिंग्स एज वेरिएबल एंड वी कैन मार्क सर्टेन थिंग्स एज अ फिक्स्ड। मतलब जैसे राउटर OSPF 1 सब जगहों पे सेम ही रहेगा, तो वो आपका कॉमन हो गया, जबकि राउटर ID आपकी सभी जगहों पे अलग अलग रहेगी। तो वी कैन हैव एज पर अवर रिक्वायरमेंट थिंग्स दैट आर वेरिएबल एंड थिंग्स दैट आर कॉमन। तो टेम्पलेट्स कॉन्फ़िगरेशन आपको अलाउ करती हैं कि आपकी जो n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, उन पे आप वैरायटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस को एक साथ कर सको, बिना एक एक करके डिवाइसेस पे लॉगिन करे, बिना एक एक करके डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करे। जस्ट क्रिएट योर टेम्पलेट ऑन टू द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर, और यहीं से बैठ के आप उस टेम्पलेट को n नंबर ऑफ डिवाइसेस पे पुश कर दो। इस टेम्पलेट में आपने सर्टेन थिंग्स को वेरिएबल मार्क कर रखा है, जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज आपकी चेंज होती रहेगी, जो फिक्स्ड वैल्यूज हैं जो आपकी सभी पे कॉमन है उनको आपने फिक्स कर रखा है, तो उनको आपको उनसे उन चीजों को नहीं पूछा जाएगा, वो आपको, क्योंकि आपने फिक्स कर रखी है वैल्यूज, उन कॉन्फ़िगरेशन को, उन वैल्यूज को सिंपल पुश कर दिया जाएगा। तो वैरायटी ऑफ फीचर्स एक्चुअल में हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली, वैरायटी ऑफ हम अपने फीचर्स सच एज स्टैटिक राउटिंग, OSPF, BGP, EIGRP, AAA, BFT, OMP, जो तरह तरह के हमारे पास फीचर्स हैं उनको हम लगा के देखेंगे, और एडिशनल कॉन्सेप्ट सच एज फॉर एग्जांपल TLOC एक्सटेंशन हम अपना कवर करेंगे। तो आफ्टर दीज 27 लैब्स
आपके पूरे टोपोलॉजी में, इस पूरे टोपोलॉजी में आपकी एंड टू एंड रीचेबिलिटी सभी जगहों से, सभी जगहों के बीच में बन चुकी होगी। आपको समझ में आ गया होगा कि अंडरले क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरले क्या होता है, राउटिंग कैसे होती है, पिंग कैसे चलता है, ट्रेस कैसे चलता है, ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड होता है, आईपीसेक कहाँ चलेगा, एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ दीस 27 लैब्स आपका क्लियर हो गया होगा। कहाँ गई, ये रही 27 लैब्स तक आपका पूरा एंड टू एंड रीचेबिलिटी आपके टोपोलॉजी में बन चुकी होगी। जब आपकी एंड टू एंड रीचेबिलिटी बन गई, अब फोकस करेंगे हम पॉलिसीज पे। पॉलिसीज मतलब policies basically are the way by which we can influence how the traffic and how the routes are learned, how the traffic moves, how the traffic is forwarded, how the routes are learned in the SD-WAN topology. हम कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल पॉलिसीज। कंट्रोल मतलब राउट पॉलिसीज। ये आपकी वो पॉलिसीज हैं जो आपके राउटिंग को इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, हब एंड स्पोक, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सर्विस इंसर्शन, जो भी नाम है, अभी हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर अंडरस्टूड है तो ठीक है, अदरवाइज हम जब आगे कवर करेंगे तब देखेंगे। तो हब एंड स्पोक पॉलिसी, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सर्विस इंसर्शन एंड चेनिंग, राउट फिल्टरिंग, टी-लॉक फिल्टरिंग, राउट लीकिंग, बीपीएम मेंबरशिप, ये आपकी सारी कंट्रोल पॉलिसीज। ये आपकी वो पॉलिसीज हैं जो हम अपने राउट्स को इन्फ्लुएंस, राउटिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए लगाएंगे। और ऑफ कोर्स इनका मिक्सचर, कुछ और पॉलिसीज जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, 8-10 पॉलिसीज हम कम से कम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो राउट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। फिर आपकी कुछ पॉलिसीज जो आपके डेटा ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस करेंगे कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लेस भी ट्रांसपोर्ट है और हम चाहते हैं कि हमारा इंटरनेट भी ट्रांसपोर्ट है। हमारी जो बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन है, हम चाहते हैं सर्टेन एप्लीकेशन का ट्रैफिक हमारे एम्प्लेस ट्रांसपोर्ट से होता हुआ जाए और सर्टेन एप्लीकेशन का ट्रैफिक हमारे इंटरनेट को एज अ ट्रांसपोर्ट यूज करते हुए जाए। जैसे अगर कोई बल्क में कोई डेटा वगैरह आपका अपलोड कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, तो उसका ट्रैफिक इंटरनेट से भेजो। बट हमारी कोई बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन है तो उसका ट्रैफिक हम एम्प्लेस से भेजना चाहते हैं। तो वी वांट टू प्रेफर फॉर एग्जांपल वन ट्रांसपोर्ट ओवर अनदर ट्रांसपोर्ट फॉर अवर डेटा ट्रैफिक। एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग फॉर द रियल टाइम ट्रैफिक, ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन या आपकी क्लाउड डिलीवर्ड एप्लीकेशन, मतलब कुछ पॉलिसीज जो आपके रियल टाइम ट्रैफिक को इफेक्टिवली आपके जो है पास करने बिटवीन द ब्रांचेस के लिए यूज की जाएंगी। AAR, एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। DIA का क्या कॉन्सेप्ट है, नेटिंग कैसे होती है, सी फ्लॉट मतलब मॉनिटरिंग करने की पॉलिसी, सी फ्लॉट मतलब आपका नेट फ्लो की तरह ही है कुछ, सी फ्लॉट पॉलिसी, QoS के सारे कॉन्सेप्ट, शेड्यूलिंग, पॉलिसिंग, शेपिंग, ये सब चीजें हम आपकी यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद पैकेट लॉस मिटिगेशन में आपके पास आ जाएंगे वो TCP ऑप्टिमाइजेशन, DRELZ, मतलब जो आपके एक टॉपिक था ना, पैकेट लॉस मिटिगेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करना, ये था पॉलिसीज में, सॉरी इसमें ये वाला पार्ट, ये सारा आपका आ जाएगा। फॉरवर्ड एरर करेक्शन, पैकेट डुप्लीकेशन, DRELZ एल्गोरिथम, ये सारा आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशन क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए, मतलब ये वाला पैकेट लॉस मिटिगेशन एंड क्वालिटी, राइट। तो ये डेटा पॉलिसीज, इसमें भी ऐसा नहीं कि इसमें ऐसी कई सारी पॉलिसीज नहीं लिखी होंगी जो हम अपने कंटेंट के हिसाब से कवर करेंगे। जैसे QoS में बहुत चीजें हैं, QoS में आपकी पॉलिसिंग है, शेड्यूलिंग है, क्यूइंग है, सब हम कवर करेंगे, मार्किंग है, वो सब चीजें हम कवर करेंगे। एंड देन SD-WAN सिक्योरिटी, ऑल्दो हमसे कहता है कि आपको सिक्योरिटी की केवल थियरी आनी चाहिए। देयर इज ओनली वन सिक्योरिटी पॉलिसी दैट यू शुड नो ऑफ, बट रेस्ट केवल थियरी है। डिस्क्राइब, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो फ्रॉम द लैब पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्क्राइब है तो मतलब आपको थियरी आनी चाहिए, बट एज अ पार्ट ऑफ अवर कंटेंट हम एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल, IPS IDS, URL फिल्टरिंग, AMP, DNS वेब लेयर सिक्योरिटी, इनको हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे और अपने SD-WAN सोल्यूशन को क्लाउड से कैसे कनेक्ट करते हैं, क्लाउड डिलीवर्ड एप्लीकेशंस और क्लाउड डिलीवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हम करके देखेंगे। तो जितना हो सकेगा सिक्योरिटी की पॉलिसी में हम उतनी पॉलिसीज को नो डाउट कवर करेंगे, उतनी पॉलिसीज को हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि हम एवरीथिंग वी विल बी एबल टू डू, सच एज अम्ब्रेला इंटीग्रेशन के लिए फिर अम्ब्रेला सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है इस वाले टॉपिक के लिए। DNS सिक्योरिटी, सिक्योर इंटरनेट गेटवे, अब इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपका अम्ब्रेला सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो इसकी मैं आपको थ्योरी बता दूंगा, आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपका इंटीग्रेशन होता है। रेस्ट लाइक जब भी आपको अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसका काम मिलेगा तो आप उसको फिर रेफर करोगे, ठीक है। बट नॉट एनीवे, हमें करना भी नहीं है, बट वी विल सी कि
कितनी हम पॉलिसीज यहाँ से अपने लैब में कवर कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल कर पाएंगे, आईपीएस कर पाएंगे, यूआरएल फिल्टरिंग कर पाएंगे, एएमपी कर पाएंगे, ये भी कर पाएंगे। ट्रस्ट सेक देखेंगे। डीएनएस सिक्योरिटी नहीं कर पाएंगे, अम्ब्रेला सब्सक्रिप्शन इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। सिक्योर इंटरनेट गेटवे के मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट होगी, जो ऑफ कोर्स हम मतलब नहीं करेंगे। तो मैं आपको इनके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बता दूंगा, दिखा दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। रेस्ट आपको जब अभी आपके प्रोडक्शन में काम मिलेगा तब आप इसको कवर करोगे। उसके बाद अपने ये वाला टॉपिक, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे कवर किया था, यहाँ पे हमने बात करी थी डिस्क्राइब क्लाउड ऑन रैंप करके जो फीचर था। क्लाउड ऑन रैंप या क्लाउड एक्सप्रेस नाम का SD-WAN का फीचर जो हमारे SD-WAN सोल्यूशन को क्लाउड से कनेक्ट करने का काम करता है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, या आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, कुछ इंफ्रा है जो आपने क्लाउड पे होस्ट कर रखा है, उससे आप कैसे अपने SD-WAN सॉल्यूशन को कनेक्ट करोगे। या आपके कुछ को लोकेशन सेंटर्स हैं, इनसे आपको कनेक्शन करना है तो आप कैसे करोगे। मल्टीपल क्लाउड, GCP, एज्योर या गूगल क्लाउड आपने यूज कर रखा है, तो किस तरीके से आप क्या ऑप्शंस आपको आपके SD-WAN में देखने को मिलेंगे, क्या वो आपके प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट देंगे कि नहीं देंगे, उनके बारे में डिस्कशन हम अगेन ये डिस्क्राइब है, बट एज अ पार्ट ऑफ आवर कंटेंट हम इन दो चीजों की लैब कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की लैब कर पाएंगे और इंफ्रा एज अ सर्विस की लैब हम कर पाएंगे। एंड एट द वेरी एंड हम अपने वैरायटी ऑफ मॉनिटरिंग फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे vManage पे, syslog, TCP डंप, अगर हमें वो PCAP फाइल चाहिए, पैकेट कैप्चर फाइल वगैरह चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे देखेंगे। किस तरीके से हम APIs को यूज करके अपने SD-WAN के वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, APIs का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, APIs को यूज करके थोड़ा ऑटोमेशन के बारे में सीखेंगे कि ऑटोमेशन किस तरीके से आपका इसमें इंटीग्रेट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड एट द वेरी एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, सॉफ्टवेयर किस तरीके से आप अपग्रेड करोगे अपने डिवाइसेस का, वो हम यहाँ से थोड़ा कवर करें। तो टोटल अगर हम बात करें तो 51 से 55 के कुछ लैब्स ऐसी हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, SSL, TLS प्रॉक्सी फॉर एग्जांपल या बाकी चीजें। तो 55, 51, 50, 55 लैब्स आप मानते हुए चलो इन टोटल छोटी छोटी हमारे पास रहेंगी। इन सभी लैब्स को आप कंप्लीट करोगे इस टोपोलॉजी में, ठीक है। ये आपकी टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी में आप इसको कंप्लीट करोगे, राइट। सर वो एक BFD लिखा हुआ था, BFD आगे आएगा वो जब थियरी करेंगे, जब अभी तो कंटेंट Okay, डिस्कस करते हैं, जब आगे हम करेंगे तब डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सर ये लैब का EVNG पे आप कर सकते हो, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप इस लैब को EVNG पे सेटअप कर सकते हो। गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि जो जिस वर्जन पे हम प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी 20.12 जो SD-WAN का वर्जन है, जहां से इन्होंने अपने नेमिंग कन्वेंशंस को चेंज किया। तो एटलीस्ट आपके मशीन पे 64 की रैम होनी चाहिए टोटल। रिकमेंडेड रहेगा कि 64 प्लस सच एज 80 गिग तक रहे तो बेटर है, क्योंकि आपका जो ये जो आप जो टोपोलॉजी बता रहे हैं ये EVNG पे कॉन्फ़िगर्ड है अपने यहाँ पे या ये सर्वर पे है, जो आपका क्लाउड सर्वर है उस पे किसी ने किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर रखा है, बट ये क्लाउड पे है, सर्वर पे है किसी, ठीक है। वो आपका सिनारियो वो आई एम नॉट श्योर कि EVNG है या EVNG Pro है जैसा है, बट आप इसको EVNG पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज ठीक ठाक चाहिए होंगे, आपको इमेजेस चाहिए होंगी, ठीक है। वन फॉर एग्जांपल vManage विल रिक्वायर एटलीस्ट 32 गीगा ऑफ रैम प्रॉपर, 4 to 8 CPUs कम से कम। ऐसे ही आपका vSmart सर्टेन अमाउंट ऑफ रैम रिक्वायर्ड करेगा, vBond आपकी CS डिवाइस को कम से कम 8 GB रैम देनी पड़ती है, और अगर आप C8000 लगाओगे तो आपको फिर और ज्यादा रैम देनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट आपको 64 प्लस गिग रैम आपको रिक्वायर्ड होगी फॉर दिस SD-WAN टोपोलॉजी, एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट इट ऑन टू योर ओन मशीन एज वेल। बट अदर देन दैट, अगर आपके पास इतना रिसोर्स नहीं है तो आप जो क्लाउड डिलीवर्ड जो आपको लैब प्रोवाइड की जाएगी उस लैब पे आप अपना सारा टेस्टिंग सारे काम। सर ये हमारा कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? आगे करते हैं उसका डिस्कशन। तो ये आपकी लैब रहेगी, फिक्स लैब है, इसी लैब पे हम अपने सारे काम करेंगे, इसी लैब पे हम अपना सारा फॉर एग्जांपल जो इन एंड आउट सारी चीजें हैं उनको देखेंगे। जितनी भी हमने पीछे लैब्स डिस्कस करी हैं 50-55 लैब्स, सारी की सारी लैब्स हम इस पे कर पाएंगे। जस्ट इन केस अगर आपको रिक्वायर्ड है कुछ अलग तरीके की टोपोलॉजी की, तो फिर आपको जो है अपने होम इन्वायरमेंट में इस टोपोलॉजी को बिल्ड करना रहेगा, वहां पे फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हो। ये लैब आपकी फिक्स रहेगी, इस लैब में आप कुछ ऊपर नीचे नहीं कर पाओगे, जैसा है वैसा रहेगा। जब हम लैब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे एक्सेस करना है,
क्या चीजें इसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं, क्या हमें कॉन्फ़िगर करनी है, वो सब हम ऑलरेडी आगे डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चंस यहाँ तक तो आप पूछो, कोई डाउट आपको यहाँ तक लगते हो। एज फार एज की शेड्यूल की बात है, कितनी क्लासेस में हमारा कंटेंट फिनिश हो पाएगा, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप एक्सपेक्ट करते हुए चलो कि लगभग 18 क्लासेस हमारे पास लगेंगी। ठीक है, अगर हम गो थ्रू करें एक बार जो है टाइमिंग के हिसाब से, तो वीकेंड बैच आपके 9 to 12 रहते हैं। आप मानते हुए चलो ये आपको एक्सेल शीट जो है ये आपके बैच की अलग बनेगी, जैसे जैसे हमारा कंटेंट होता रहेगा एक्सेल शीट आपकी अपडेट होती रहेगी। तो आप मानते हुए चलो कि लगभग आपके 18 से 20 क्लासेस लगेगी। 18 से लेकर 20 क्लासेस के बीच में आपका ये कंटेंट फिनिश होगा। 18 से 20 क्लासेस के बीच में हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट फिनिश होगा। अगेन सब्जेक्टेड टू, क्योंकि हम नया कंटेंट कवर करेंगे, पुराने कंटेंट की आपकी आउटलाइन है। पुराने कंटेंट में भी वैसे सारा कवर हो ही जाता था। तो आप 18 to 20 क्लासेस आप मानते हुए, 18 to 20 क्लासेस में बोल रहा हूँ, 18 to 20 क्लासेस आप मानते हुए चलो, जिसमें आपका जो कंटेंट है पूरा थ्योरी एंड लैब वाला ये आपका कंप्लीट होगा। लगभग हम अपने तीसरे वीक से हम अपनी लैब स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग के जो हमारे 2 वीक रहेंगे, इन 2 वीक में हमारी थियरी कवर होगी, फिर लगभग हम अपने तीसरे वीक से अपना जो लैब का पार्ट है वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लैब जो हमारे पास है, कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट मेथड, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जो भी आपके मतलब लैब्स के कॉन्सेप्ट हैं, ये इंडेक्स आपको जो है आपके रेगुलर जो आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, रेगुलर बेसिस पे आपकी अपडेट रहेगी। तो आप ये मानते हुए चलो कि आपका जो है 18 to 20 क्लासेस में आपका इंटायर कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। 18 20 क्लासेस आई विल रिक्वायर। बीच में अगर कुछ हॉलीडेज वगैरह होते हैं तो आप फिर एडिशनल मानते हुए चलो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अभी आपका आएगा 31st आएगा आपका दिसंबर वाला। दोनों तो ऑफ नहीं करेंगे, बट एक दिन जैसे 31st वाला ऑफिशियली ऑफ है, तो मतलब वो एक ऑफ रहेगा। तो सब्जेक्टेड टू मतलब एक आधे अगर आपके ऑफ हो गए तो आप थोड़ा क्लासेस अकॉर्डिंगली मान लेना, बट ऑफिशियली आपकी 18 क्लासेस, 18 to 20 क्लासेस में आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। 3 hours a डे, 2 सेशन में हम करेंगे अपनी क्लासेस। पहला आपके पास रहेगा 9 to 10:30, उसके बाद हम अपना एक 15 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे ताकि आप थोड़ा रिफ्रेश वगैरह हो जाओ। एंड देन उसके बाद हम अपने 10:45 से जो रेस्ट हमारा जो 12 तक का कंटेंट है, 12 से पहले ही छोड़ दूंगा क्योंकि 12 से मेरा एक ऑलरेडी और बैच है। तो आप मानते हो चलो 11:45 या आपके पास 11:50 तक हम अपना कंटेंट करेंगे। ठीक है, जो भी आपके Q&As हों सब इसी में आप करते रहो, Q&As जो आपके हों आप करते रहो। ठीक है, ताकि हम टाइमली अपने कंटेंट को फिनिश कर सके। तो आप मानते हो चलो लगभग आपके 2 hours 40 minutes 2:45 तक की आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी रेगुलर बेसिस पे मतलब रहेंगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे 18 क्लासेस में लगभग कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। जब लैब स्टार्ट होगी तो मैं आपको लैब के बारे में ब्रीफ करूंगा, कैसे करना है कैसे नहीं, क्या आपको किस अप्रोच से कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है क्या नहीं, और आप उसी को फिर अपने खाली टाइम में आप उसको रिपीट करोगे। कुछ डाउट्स आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। आई ऑल्सो हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द SD-WAN क्लासेस। तो एज सुन एज आई गेट अ कंफर्मेशन, थोड़ा 1-2 दिनों के बाद, मतलब मे बी नेक्स्ट वीक, नॉट दिस वीक, नेक्स्ट वीक जब एक बार कंफर्म हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स आपके फाइनल हैं, सो आई विल ऐड यू गाइस इनटू दैट SD-WAN व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि जब आप कभी SD-WAN की क्लासेस कर रहे हो और कुछ चैलेंजेस आए, कुछ इश्यूज आए, तो आप जो है उस ग्रुप में पोस्ट करो, और कोई ना कोई जो भी आपके अवेलेबल होगा, मैं अवेलेबल होऊंगा तो मैं, अदरवाइज कोई ना कोई आपको जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। सर ये जो मटेरियल मिलेगा IMET डेटा से स्टडी मटेरियल, हाँ, वो हार्ड कॉपीज जो वो मिलेंगी आपको लैब, मैनेजमेंट, वो आपको वही बता पाएंगे, वो आपका नहीं मैनेजमेंट वाला है। राइट, मेरे को एक चीज पूछनी थी उसमें कि हाँ, उसमें सिर्फ लैब्स रहेंगी कि थ्योरी भी रहेगी? नहीं लाइक लैब की अलग एक आपकी वर्कबुक है और आपके थ्योरी की एक अलग वर्कबुक है। जो हम PPTs यूज करेंगे क्लासेस में वो आपको हार्ड कॉपी फॉर्मेट में दे दी जाएगी, और एक लैब वर्कबुक है जिसको आप रेफरेंस की तरह यूज करोगे। लैब वर्कबुक में आपके तरह तरह के टॉपिक्स हैं, उनको आप एक रेफरेंस की तरह यूज करोगे। तो दोनों चीजें हैं, लैब के लिए अलग है और आपकी थ्योरी के लिए अलग है। ओके सर। अब हार्ड कॉपी रहेगी या आपके पोर्टल पे अपलोडेड रहेगी वो आपको देखना पड़ेगा। आइडियली जितना मेरे को पता है हार्ड कॉपी रहती है। ठीक है, आपकी लोकेशन पे वो हार्ड कॉपी सेंड कर दी जाती है और आप उसको रेगुलर बेसिस पे रेफर करते हैं। जस्ट इन केस अगर आपकी हार्ड कॉपी सेंड करना पॉसिबल नहीं है तो यू कैन हैव अ डिस्कशन विद मिस्टर सुगंध एंड सौरभ, एंड दे विल ईदर अपलोड इट ऑन टू द पोर्टल और दे विल प्रोवाइड यू सम वे जिसको यूज करके आप जो है लैब्स और अपना थियरी पार्ट कंप्लीट कर पाओगे। तो आप 20 क्लासेस तक का शेड्यूल मानते हुए चलो, 20 क्लासेस आप मानते हुए चलो कि हम अपना कंटेंट फिनिश करेंगे।
नया जो हमारा वर्जन 1.2 का कंटेंट है वो, क्योंकि 20.12 जो हमारा वर्जन है हम उस पर काम करेंगे। 20.12 आपका बहुत स्टेबल वर्जन नहीं है, ठीक है। तो हियर एंड देयर कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ बग्स आ सकते हैं, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, वो सारे फेस करने पड़ेंगे। सिस्को के हिसाब से तो आपको 20.6 पे काम करना चाहिए, सही सही बताऊं तो। सिस्को के हिसाब से अगर हम सिस्को के ऑफिशियल, अगर हम उस पे जाएं जो इनका पोर्टल है, अगर हम ऑफिशियल इनकी रिलीज पे जाएं, जो इनका जहां से हम अपने SD-WAN की चीजों को डाउनलोड करते हैं, तो वहां पे आपको जो रिकमेंडेड रिलीज देखने को मिलेगी वो 20.6 मिलेगी। एग्जाम के हिसाब से अगर हम बात करें, हम अपने CCI एग्जाम के हिसाब से बात करें तो 20.9 है, और लेटेस्ट जो है आपका 20.12 है। अब आप बताओ आपको किस पे काम करना है? तीनों पे करा देंगे, मतलब तीनों पे करा सकते हैं, तीनों पे तो नहीं करा पाएंगे, मतलब तीनों में से किसी एक पे करा देंगे। मतलब कंटेंट, मतलब रिकमेंडेड रिलीज के हिसाब से 20.6 है, एग्जाम के हिसाब से 20.9 है। जो आपका CCI एग्जाम है, जो आपका फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है, उसमें आपके 20.9 है, और जो लेटेस्ट रिलीज है जिसमें उन्होंने नेमिंग कन्वेंशन एंड एवरीथिंग आपके चेंज करती हैं, वो 20.12 है। तो 20.12 is the best option, sir. हाँ, 20.12 एक्चुअली वही आपके प्रोडक्शन में यूज भी हो रहा है, तो करेंगे हम 20.12 पे। मैं आपको बस बता रहा था कि देयर इज अ डिफरेंस, कि क्या वो रिकमेंड करते हैं वर्सेस क्या आपके प्रैक्टिकली आपके मार्केट में चल सर इसमें कुछ कमांड्स वगैरह का डिफरेंस है क्या? रहा है। नहीं नहीं नहीं, कमांड्स का डिफरेंस नहीं, केवल UI का डिफरेंस है। जो आपका GUI है ना, 20.12 में थोड़ा अलग सा है, 20.9 में थोड़ा अलग सा है, 9 और 6 में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जो हम देख पाएंगे। बट 20.12 का जो GUI है वो थोड़ा सा अलग सा है एक्चुअली। Sir, is this the device version we are talking about? सॉफ्टवेयर वर्जन, Software version. मतलब जो आपके कंट्रोलर्स के और जो आपके VANET डिवाइस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है उसका वर्जन, Okay. राइट। तो iOS जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, तो वैसे इनका जो कंट्रोलर्स का सॉफ्टवेयर वर्जन है, vSmart का सॉफ्टवेयर वर्जन 20.6, 9 या 12। तो 12 पे ही बेस्ट रहेगा, 12 पे ही हम करेंगे। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन 20.12 पे ही करेंगे। दिक्कतें आएंगी, नो डाउट फेस करेंगे, अब क्या करेंगे, क्योंकि वो एज पर अवर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट यही चल रहा है 20.12। ऑल्दो वो रिकमेंड 20.6 करते हैं, और एग्जाम में 20.9 रहेगा। 20.12 पे आप काम करोगे, 20.6 और 9 के सारे फीचर्स एनीवे कवर हो ही जाएंगे, बस केवल यूजर इंटरफेस आपका और कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपके 20.6 और 9 में नहीं है। ऑल्दो हमें उनके बारे में कुछ मतलब नहीं है, हमें देखो, हमें जो कंटेंट कवर करना है वो आपके सामने मेंशन्ड है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं। आइडियली होगा यही कि हम कंटेंट के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। जो हमारा कंटेंट है, हमारा कंटेंट पूरा कवर होगा। कंटेंट के आगे पीछे हम किसी फीचर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हियर एंड देयर जब हम जैसे फॉर एग्जांपल अपने vManage का GUI एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो हियर एंड देयर कुछ फीचर्स आपको दिखेंगे, ठीक है, जो आपके कंटेंट में नहीं है। अगर उनके बारे में डिस्कशन करने लायक होगा तो बात कर लेंगे, बट अदर देन दैट, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम पूरा एक एक करके सारी टैब्स एंड एवरीथिंग, नहीं, वो सब नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक कि हम अपने vManage में जो हमारा कंट्रोलर है, इट्स लाइक कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम vManage के एक एक ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लोर करें। वो जब आप अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जब आप करना, जैसे आपके जो फीचर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं उनको सीखना और आप इम्प्लीमेंट करना। एज अ पार्ट ऑफ आवर कंटेंट हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इन चीजों के बारे में हम एकदम 100% पता करेंगे, प्लस एडिशनल ऊपर नीचे कुछ होगा तो देखेंगे। बट इट्स नॉट लाइक कि हम एवरीथिंग फ्रॉम अवर vManage डैशबोर्ड, ऐसा नहीं कि हम अपना सब चीजें, क्योंकि वो अब ऐसे तो ऐड करते रहेंगे। 20.9 में कुछ है, 6 में कुछ है, 12 में कुछ और आ गया, आगे कुछ और आ गया। तो फीचर बाय फीचर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जब फीचर्स का काम आपके प्रोडक्शन में हो तब आप उस फीचर के बारे में पढ़ो, अदरवाइज एनीवे भूल तो जाओगे ही, राइट। तो हम इन पे फोकस करते हुए, जो कंटेंट सामने लिखा हुआ है इस पे फोकस करते हुए अपने SD-WAN Viptela वर्जन 20.12 पे हम काम करेंगे। कंटेंट सर में कुछ 20.9 में कोई ऐसा बड़ा बग तो नहीं है कि जो लैब में किसी तरह की दिक्कत करे? नहीं नहीं, देखो अभी एग्जाम में? नहीं नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ देखो कंफर्म नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं तो 20.9 में जितना मैंने प्रैक्टिस करी, जो हमारे कंटेंट में चीजें, उसमें तो कुछ इशू नहीं है। कंटेंट में जो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब लैब में मतलब क्या आता है वो थोड़ा सब्जेक्टिव है कि भाई जब कोई लैब है, बट अब तो अभी तो कोई लैब दे ही नहीं रहा वैसे एनीवे। तो जब कोई हाँ लैब हाँ देगा, जब कोई अटेम्प्ट करेगा, तब पता लगेगा कि भाई कुछ चैलेंजेस हैं क्या, तब आपको वैसे स्टेबल रिलीज ही वो आपके लैब में डालते हैं। तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लैब में जो टास्क रहेंगे, लैब एग्जाम में कह रहा हूँ, CCI लैब एग्जाम में जो हाँ टास्क जी, रहेंगे, उसमें आपका ऐसा कुछ जो है बग या ऐसा कुछ इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक। ऐसा एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल ऐसा पूरा, क्योंकि पिछले जो आपकी लैब्स हुई उनमें ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ, और एक कोर्सेस में अपना लैब कैसा होगा, मतलब लैब हम लोग कैसे करेंगे? लैब मैंने बताया आपको, पोर्टल मैंने बताया कि किस तरीके से आप ज्वाइन करोगे, ये रहेगी हमारी लैब, इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। कैसे एक्सेस करना है, क्या नहीं, वो हम आपका जब लैब स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे।
ऑनलाइन आपकी क्लाउड डिलीवर्ड लैब रहेगी, आप वीपीएन को यूज करते हुए इस लैब से कनेक्ट करोगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। ये भी हमने पीछे डिस्कस किया कि लैब क्या लैब कवर करेंगे, कितनी लैब कवर करेंगे, ये अभी हमने डिस्कस किया। हाँ ओके कैसे करेंगे वो हम जब डिस्कस करेंगे तब हम अपना लैब का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके बेसिकली शॉर्ट आंसर, वीपीएन जो आपका एनी कनेक्ट वीपीएन है, आपको उसके बेसिस पे इस लैब का एक्सेस दिया जाएगा। आप अपने ब्राउजर से, अपने लोकल लैपटॉप के ब्राउजर से ही अपने वीएनएच का GUI एक्सेस कर पाओगे। तो कोई मतलब आपको लैब पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चैलेंजेस नहीं आए। ओके, मतलब अपने SD-WAN अपन लोगों ने इसमें क्लाउड पे डाला हुआ है और अपना राउटर्स वगैरह अपने लैब में है या कैसा, मतलब वो वर्चुअली, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हाँ, ये करते सारे राउटर ही है ना, साइट वन VH, सारे राउटर्स ही हैं जो आपके क्लाउड पे हैं, जो आपके जो भी मतलब क्लाउड डिलीवर्ड जो आपकी लैब है उस पे आपके राउटर्स कंट्रोलर सारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आपको बस केवल कॉन्फ़िगरेशन करके रीचेबिलिटी बनानी है। सर ये जो टेम्पलेट्स वगैरह का आप जो बता रहे थे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, उसके लिए क्या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आनी चाहिए? नहीं नहीं, इसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, अब जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। प्रीरिक्विजिट आपके ये आपका कोई मतलब बिगिनर लेवल का कोर्स नहीं है, जस्ट आपको ऑलरेडी आइडिया लग गया होगा। तो क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। प्रीरिक्विजिट्स के हिसाब से आपको राउटिंग का आइडिया होना चाहिए, आपको बेसिक राउटिंग का आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है फॉर एग्जांपल स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, OSPF क्या होता है, BGP क्या होता है, EIGRP क्या होता है। आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये कहाँ गया, जैसे पता होना चाहिए आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है। एज पर अवर कंटेंट हमें इम्प्लीमेंट करना है, हमें पढ़ना नहीं है। तो जो आपकी राउटिंग का पार्ट है वो आपको पहले से आना चाहिए। आपको ऑलरेडी चीज़ों के बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डायनामिक राउटिंग क्या होती है, IP क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, ठीक है, EIGRP, OSPF, क्वालिटी ऑफ सर्विस, NAT क्या होता है। ठीक है, मतलब जो कंटेंट में टॉपिक्स मेंशन है उनका आपको एटलीस्ट बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बस आपको जो बेस ये क्योंकि राउटिंग का पार्ट SD-WAN, तो आपको राउटिंग का आइडिया एक होना चाहिए। इंटरमीडिएट लेवल तक कहूंगा मैं, बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल तक आपको राउटिंग का आइडिया होना चाहिए। मतलब जो भी टॉपिक्स आपके मेंशन हैं, ठीक है, उनका आपको हल्का फुल्का आइडिया पहले से होना चाहिए। सच एज फॉर एग्जाम्पल, अब बैनर क्या होता है, अभी आप CCNA लेवल की बात है, तो बैनर क्या होता है आपको आइडिया होना चाहिए। सच एज फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक राउटिंग, OSPF, इन सब का आपको पहले से आइडिया होना चाहिए। we will implement these, we will not talk about these। जब मैं कहूंगा कि OSPF एरिया 10, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि OSPF में एरिया 10 क्या होता है। राइट। तो सर ऐसे लाइक हम कोई ऐसा माइग्रेशन का भी करेंगे क्या, जैसे से फॉर नहीं, एग्जांपल हमारे माइग्रेशन लैब की में? थियरी डिस्कस करेंगे बट लैब नहीं करेंगे उसकी। माइग्रेशन के लिए जैसा मैंने बताया, माइग्रेशन गाइड है, आप उस माइग्रेशन गाइड को डाउनलोड कर सकते हो और आप अपनी प्रोडक्शन टोपोलॉजी के हिसाब से आप उसमें देख सकते हो कि क्या स्टेप्स, क्या रिकमेंडेड आपके ऑप्शंस रहेंगे। एक हमारा टॉपिक आएगा यहाँ पे माइग्रेशन का, एट द वेरी एंड हमारे पास एक टॉपिक रहेगा माइग्रेशन का, बट वो आपका थियरी है, उसमें कोई लैब हमें कवर नहीं करनी है। तो इसलिए मैं आपको शो कर दूं, ये रहा। SD-WAN माइग्रेशन वाले टॉपिक में हम थियरी कवर करेंगे कि क्या क्या आपके जैसे कंट्रोलर्स को कैसे डिप्लॉय करते हैं, डेटा सेंटर माइग्रेशन, ब्रांच माइग्रेशन कैसे होता है, तो रेस्ट क्या कमांड चलानी पड़ेंगी, क्या कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, बट इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो अपने टोपोलॉजी में हमने ऑलरेडी कर रखा होगा, पॉइंट ये है। ठीक है, बस आपको करके नहीं दिखाया जाएगा, कि मतलब करके नहीं दिखाने का मतलब ऐसा नहीं कि हम एक लाइव कुछ अपना ट्रेडिशनल राउटर हटाएं और SD-WAN राउटर लगाएं, ऐसा नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमारी जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्ट है, जैसे यहाँ पे आपका एक वैनेज राउटर आपके इंटरनेट और MPLS से कनेक्टेड है। अगर हम अपनी टोपोलॉजी पे जाएं तो हमारे टोपोलॉजी में ऑलरेडी ये होके रखा हुआ है, इनफैक्ट 3 जगहों पे होके रखा हुआ है, यहाँ भी होके रखा हुआ है, यहाँ भी होके रखा हुआ है, ठीक है, इधर भी होके रखा हुआ है। तो मतलब ऑलरेडी हमने डिप्लॉय कर रखा है। मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा कि हमने कहाँ पे ये कर रखा है, बट मोर लाइक वो आपका थियोरेटिकली कवर होगा। और ये जो लैब सेटअप है सर, हाँ। मतलब इसमें जो कंट्रोलर्स हैं, राइट, हाँ। वो कंट्रोलर्स इन टर्म्स ऑफ इस तरीके से डिप्लॉयड है कि वो ऑन प्रेम है या फिर ऑन ऑन प्रेम प्रेम वाले? ऑन प्रेम में मैं आपको अच्छा, दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मतलब आपके ऑन प्रेम पे अगर आपको कंट्रोलर डिप्लॉय करना है तो कैसे करना है, बट आप कर नहीं पाओगे। बस मैं करके दिखा दूंगा आपको, मैं एक सर्वर पे ये सक्साई पे एक वर्चुअल मशीन बना के मैं आपको दिखाऊंगा करके, ठीक है, बट आप नहीं कर पाओगे। आपको बस केवल थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ कैसे आपका ये काम होता है।
क्लाउड का भी देखेंगे क्या सर, कोई एग्जांपल क्लाउड का आपका फिर AWS Azure उन सब की नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होगी। क्लाउड पे हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको कोई ना कोई, मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लाउड पे होता कैसे है, बट हम करके नहीं देखेंगे उसको। उसके लिए आपको कोई ऑनलाइन वीडियो अगर आपको कोई मिल जाए तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। प्रोसेस सेम रहता है, प्रोसेस डिप्लॉयमेंट का सेम ही टाइप रहता है, बस कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट सच एज आपके, अगर हम AWS की बात करें तो उस पर VPC, Azure की बात करें तो VNet, राउट, वो सब हम नहीं कवर करेंगे, एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। नहीं सर, जो जो सिनेरियो मेरे दिमाग में आ रहा है ना, वो ये है कि लेट्स सपोज किसी साइट पे MPLS है, राइट, और उस MPLS के थ्रू मुझे क्लाउड पे जाके कनेक्ट नहीं होना कर सकते, कर ही नहीं सकते, आपको ऑप्शन नहीं है। वो सिनेरियोस डिस्कस करेंगे बट हम करके नहीं देखेंगे, वो ऑप्शन नहीं है। क्लाउड डिप्लॉयड कंट्रोलर्स आपके पब्लिकली ही रीचेबल रहते हैं। जब तक आप कुछ इंटरकनेक्ट बीच में ना यूज करोगे, जब तक आप कोई बीच में कोई इंटरकनेक्ट का ऑप्शन नहीं यूज करते, ठीक है, क्लाउड इंटरकनेक्ट का, जहाँ पे आप या कुछ भी आप ऐसे, आप हो सकता है कि अपने उस ब्रांच से, फॉर एग्जांपल जो M+ ब्रांच है, वहां से आप अपना सारा ट्रैफिक कहाँ भेज दो, अपने DC भेज दो। DC से क्या करवाओ, आप जो है इंटरनेट एक्सेस करवाओ। तो बट अदरवाइज क्लाउड डिलीवर्ड कंट्रोलर्स आपके केवल क्लाउड पब्लिक ही एक्सेस किए जाएंगे। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे बट करके नहीं देखेंगे। ये सब डिस्कशन तो करेंगे नो डाउट, ठीक है, सिनेरियो के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट उसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है कि क्लाउड पे डिप्लॉय कैसे करना है, वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाएंगे, और ना ही हमारे कंटेंट का वो पार्ट है। ठीक है सर। So once we finish this Cisco SD-WAN, we need another courses regarding WAN related, SD-WAN related, or all the topics will covered in SD-WAN. No, this is it. This is everything that you should know from the SD-WAN content point of view, Cisco SD-WAN content point of view. That's it for the SD-WAN. Okay. हाँ, मतलब केवल SD-WAN के लिए आपको ये जो कंटेंट है 18-20 क्लासेस सफिशिएंट रहेंगी। एडिशनली आप SD एक्सेस फॉर एग्जांपल आप कर सकते हो, जो कि SDN का ही एक और जो LAN के साइड के लिए जो इनका सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हो। एंड अगर DC वगैरह की बात करते हो तो आप ACI देख सकते हो, बट अदर देन दैट आपको SD-WAN के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और करने की जरूरत नहीं। और इसका सर्टिफिकेशन का एक बार बारे में बताओ, सर्टिफिकेशन क्या है, कॉस्ट कैसे रहता है, कभी करना है? अब करती है डिस्कस। आप लेट ज्वाइन किए क्या? ओके, हाँ मैं लेट हो गया, मैं बीच हाँ, में। आप रिकॉर्डिंग रेफर कर लेना। आप एक बार हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, ये मैं वही डिस्कस कर रहा था कि एग्जाम क्या होता है, तो ये अभी पीछे आप रिकॉर्डिंग एक बार रेफर कर लेना। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया हुआ है कि आपका क्या कंटेंट रहेगा, कैसे कवर करेंगे, ठीक है, वो आप एक बार रिकॉर्डिंग से रेफर कर लेना। 90 मिनट्स का एग्जाम है, MCQ आते हैं, ठीक है, वो आप थोड़ा वैसे देख लेना। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब एक कंपलसरी है, क्या करने की जरूरत है, क्या कुछ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कंपनी रिक्वायर करती है, अगर आपकी कंपनी कहती है कि नहीं आपको SD-WAN सर्टिफाइड रहना है, तब आप करो, अदरवाइज सच एज कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉलेज सफिशिएंट रहेगी। अब ऐसा होता है कि जैसे सपोज आप SD-WAN के बेसिस पे स्विच करना चाहते हो और कंपनी रिक्वायर करती है कि आप SD-WAN सर्टिफाइड रहो, देन नो डाउट आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अदर देन दैट इट्स नॉट मैंडेटरी। हाँ, बट my certification will create the plus point, so that's why I'm asking. आप SD-WAN सर्टिफाइड रहोगे तो नो डाउट आपको एज मिलेगी कंपैरेटिव टू अदर कैंडिडेट्स। तो जस्ट इन केस हमारा जो कंटेंट रहेगा वो कंटेंट पूरे एवरी टॉपिक्स कवर करेगा जो हमारे SD-WAN के सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए। देन आप थोड़ा बुक्स रीड कर लो, थोड़े इधर से क्वेश्चन देख लो, एंड यू विल बी रेडी फॉर सर्टिफिकेशन। ओके, सो डिस्कस करते हैं आपके SD-WAN सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन ओवरव्यू कि SD-WAN में मतलब एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से आपके SD-WAन बेनिफिट देगा आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो ट्रेडिशनल जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, ट्रेडिशनल जो आपकी डिवाइसेस हैं, अगर हम डिवाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक डिवाइस में आपको टोटल 3 आर्किटेक्चरल प्लेन्स आपको देखने को मिले। एक आपका, अच्छा हम यहाँ पे सारा राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, वैन एज, वैन राउटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। स्विचेस की फिलहाल हम डिस्कशन नहीं कर रहे, बट काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके वहां पे भी सिमिलर वे में अप्लाई, जैसे ये अभी जो हम बात करने वाले हैं। तो डिवाइसेस पे सच एज फॉर एग्जांपल आपका एक राउटर है, राउटर की जो भी आपकी फंक्शनलिटीज हैं उनको आपका जो है टोटल 3 आर्किटेक्चरल प्लेन्स में आपका डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो आर्किटेक्चरल प्लेन्स है, मतलब डिवाइस का जो फंक्शन है, दैट कैन बी पुट इन द मैनेजमेंट प्लेन फंक्शन। देयर आर सम फंक्शंस ऑन द डिवाइस जिनको हम मैनेजमेंट प्लेन के फंक्शंस आपका कहते हैं। देन देयर आर सम फंक्शंस ऑफ द डिवाइस जिनको हम कंट्रोल प्लेन फंक्शंस कहते हैं। देयर आर सम फंक्शंस ऑन द डिवाइस जिसको हम डेटा प्लेन के फंक्शंस कहते हैं। तो मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, दीज आर 3 आर्किटेक्चरल प्लेन्स ऑफ द डिवाइस। याद रखना हम यहाँ पे बेसिकली राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं।
राइट। तो अगर हम एक राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वी हैव दिस थिंग कॉल्ड लाइक 3 आर्किटेक्चरल प्लेन्स है हमारे पास। एक है हमारे पास मैनेजमेंट प्लेन, एक है हमारे पास कंट्रोल प्लेन और एक है हमारे पास डेटा प्लेन। मतलब some functions of the device are handled by the management plane, some functions of the device are handled by the control plane, and some functions आपका data plane आपकी डिवाइस का हैंडल करता है। टिपिकली मैनेजमेंट प्लेन जो आपके पास होता है वो डिवाइस मैनेजमेंट से आपका डील करता है। मतलब हाउ यू हैव एक्सेस द डिवाइस, हाउ द डिवाइस इज बीइंग मैनेज्ड। क्या आप उसको CLI से मैनेज कर रहे हो, क्या आप उसको GUI से मैनेज कर रहे हो, क्या आप एक्चुअल में SNMP, syslog, मतलब ये जो आपके जितने भी मैनेजमेंट लेवल के प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स को यूज करके आप डिवाइस का मैनेजमेंट परफॉर्म करते हो, ऑल दोज प्रोटोकॉल्स आर व्हाट वी रिफर टू एज द मैनेजमेंट प्लेन प्रोटोकॉल्स। या आप उनको जो है मैनेजमेंट प्लेन के फंक्शंस बेसिकली हम कहते हैं। तो टास्क्स दैट अ डिवाइस परफॉर्म्स to manage the device, to handle the device, those tasks, those functions are what we refer to as the management plane function. Device management करना आपके management plane की responsibility. How the device is being managed, that handling is done by this management plane of the device. Right? तो management plane आपके device का वो part होता है जो device management deal करता है कि आपने device को किस तरीके से access लिया है। आज के टाइम पे आपके ऐसे कई सारे switches आते हैं जिनका हम both, आज के टाइम पे ऐसे कई सारे राउटर्स आते हैं जिनका हम बोथ CLI और GUI दोनों एक्सेस ले सकते हैं। SNMP के थ्रू हम उन पे कॉन्फ़िगरेशंस पुश कर सकते हैं, आपके syslog के थ्रू लॉग्स वगैरह रिट्रीव कर सकते हैं, नेटफ्लो और तरह तरह के मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स को हम रन करा सकते हैं। तो मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ द डिवाइस आर हैंडल्ड बाय दिस मैनेजमेंट प्लेन ऑफ द डिवाइस। मैनेजमेंट फंक्शन हैंडल करने की रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट प्लेन की। ना अगर हम एक राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक राउटर का काम है कि पैकेट जब आपके एक इंटरफेस पे आए तो उस पैकेट को दूसरे इंटरफेस से पास करो। जब पैकेट आपको एक नेटवर्क का रिसीव होता है, पैकेट आपके किसी दूसरे नेटवर्क के लिए है, तो पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे राउट करने का काम आपका एक राउटर परफॉर्म करता है। राउटिंग जिसको हम बेसिकली कहते हैं। तो राउटिंग वगैरह करने के लिए, पैकेट को एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे प्लेस करने के लिए, आपके पैकेट को फॉरवर्ड करने के जो भी डिसीजंस होते हैं, मतलब राउटर को अगर राउटिंग परफॉर्म करनी है तो कैसे, हु इज गोइंग टू टेल दिस राउटर कि आपका पैकेट अगर FA0/0 पे आता है तो उसको FA0/1 से एग्जिट करना है, क्योंकि वो आपके 10.1.2.1 की तरफ जा रहा है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी वैरायटी ऑफ टेबल्स बिल्ड करना। Control plane is responsible to build variety of tables such as routing table, such as ARP table, ARP cache. अगर स्विच होता तो फॉर एग्जांपल एक मैक एड्रेस टेबल वगैरह हो जाती। तो वैरायटी ऑफ टेबल्स बिल्ड करना कंट्रोल प्लेन की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स, कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल्स, आपकी वैरायटी ऑफ टेबल्स को बिल्ड करना, जिन टेबल्स को यूज करके आपका डेटा प्लेन एक्चुअल में डेटा फॉरवर्डिंग परफॉर्म कर सके। कंट्रोल प्लेन कंट्रोल्स द डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन आपके डेटा प्लेन को ये बताता है कि अगर आपको कोई पैकेट मिलता है जिसका डेस्टिनेशन IP 10.1.2.1 है तो आपको उस पैकेट को कैसे पास करना है। कंट्रोल प्लेन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड वैरायटी ऑफ टेबल्स जिनको यूज करके आपके पैकेट की एक्चुअल में फॉरवर्डिंग परफॉर्म की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 राउटर हैं, हम 2 राउटर पे जाके इन राउटर्स के बीच में, यहाँ पे आपके कुछ लैन नेटवर्क्स हैं, यहाँ पे आपके कुछ लैन नेटवर्क्स हैं, हम इन दोनों राउटर के बीच में इन राउट्स को एक्सचेंज करने के लिए हम एक प्रोटोकॉल रन कराएंगे। दैट प्रोटोकॉल इज लेट्स से फॉर एग्जांपल OSPF। तो हमने OSPF प्रोटोकॉल चलाया या मे बी हमने स्टैटिक राउटिंग कर दी, व्हाटएवर। जब हमने OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया तो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल ने अपने कुछ मैसेजेस भेजे, मैसेजेस भेज के इन राउट्स की इंफॉर्मेशन को राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में एक्सचेंज किया, टेबल बनी। OSPF आपकी तरह तरह की टेबल्स बिल्ड करता है, जैसे आपकी नेबल टेबल, डेटाबेस टेबल, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल जो आपके पास होती है ये आपकी यूज की जाती है बाय द डेटा प्लेन टू फॉरवर्ड द पैकेट फ्रॉम वन इंटरफेस टू द अदर इंटरफेस। तो OSPF runs as the OSPF is a routing protocol that runs at the control plane of the device. OSPF की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैरायटी ऑफ टेबल्स को बिल्ड करे, with tables such as for example neighbor table, such as database table, such as routing table, and उन tables को build करके अपने operations को manage करे। and जो table वो build करता है, जैसे for example जो उसने routing table build करी, it will be used to actually forward data through that router। तो कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल्स या कंट्रोल प्लेन ऑपरेशंस आपके वो ऑपरेशंस जो आपकी डिवाइस पे परफॉर्म होते हैं, वो ऑपरेशंस जो आपका डिवाइस का CPU
आपके पास परफॉर्म करता है, सच एज फॉर एग्जांपल OSPF के पैकेट को जनरेट करने का काम आपके डिवाइस का है, OSPF के पैकेट को रिसीव करके CPU को देने का काम आपके डिवाइस का है। तो कंट्रोल प्लेन मतलब कंट्रोल प्लेन ऑपरेशंस, कंट्रोल प्लेन फंक्शंस मतलब जो CPU सेंट्रिक ऑपरेशंस होते हैं, CPU सेंट्रिक जो आपके CPU इंटेंसिव जो फॉर एग्जांपल आपके ऑपरेशंस होते हैं, वो आपके कंट्रोल प्लेन के फंक्शन के अंदर में आते हैं। कंट्रोल प्लेन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड वैरायटी ऑफ टेबल such as routing table, ARP cache, in case of such a MAC address table, database table, neighbor table, variety of tables को build करो based on which कि आपका data plane real में actual में data forwarding कर सके। It is the control plane that tells the data plane कि भाई आपके पास अगर कोई पैकेट आता है FA0/0 पे तो उसको ऐसे पास करना है। Data plane actually does the data forwarding। Data plane का काम क्या है? पैकेट आए, पैकेट को डिकैप्सुलेट करो, डिकैप्सुलेट करो पैकेट को, चेक करो कि पैकेट का डेस्टिनेशन IP क्या है या पैकेट का डेस्टिनेशन मैक क्या है इन केस ऑफ स्विचिंग, एंड देन बेस्ड ऑन द एंट्रीज इन द राउटिंग टेबल, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन टू मी बाय द कंट्रोल प्लेन, हम उस पैकेट को आगे पास करेंगे। डेटा प्लेन एक्चुअली पैकेट को रिसीव करके डिकैप्सुलेट करता है, लुकअप करता है, राउटिंग टेबल लुकअप करता है कि अच्छा हमारे राउटिंग टेबल में इस डेस्टिनेशन तक जाने का कौन सा एग्जिट इंटरफेस है, फिर उस इंटरफेस पे पैकेट को प्लेस करेगा, दोबारा से इनकैप्सुलेट करेगा एंड देन पैकेट को आगे की तरफ पास करेगा। तो एक्चुअल डेटा फॉरवर्डिंग का काम आपका डेटा प्लेन करता है। मैनेजमेंट प्लेन डिवाइस मैनेज करने का काम, कंट्रोल प्लेन आपकी वैरायटी ऑफ टेबल्स बनाने का काम, और एक्चुअल में डेटा फॉरवर्डिंग करने का काम आपका डेटा। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन और डेटा प्लेन आपको देखने को मिलेंगे। कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन और डेटा प्लेन आपको डिवाइस पे देखने को मिलेंगे। बस दिक्कत यह है, दिक्कत नहीं मतलब पॉइंट यह है कि हर एक डिवाइस का अपना अपना कंट्रोल प्लेन होता है, अपना अपना मैनेजमेंट प्लेन होता है और अपना अपना डेटा प्लेन होता है। एवरी डिवाइस, हर एक, जैसे आपने 2 राउटर लगा रखे हैं तो दीज 2 राउटर हैव देयर ओन कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन एंड डेटा प्लेन। और इसी वजह से, क्योंकि सबका एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, सबके पास अपना अपना कंट्रोल प्लेन है, मैनेजमेंट प्लेन और डेटा प्लेन है, मतलब अगर हमें इस डिवाइस का मैनेजमेंट करना होगा तो हमें इसका एक्सेस लेना पड़ेगा कंसोल लगा के, या अपने मैनेजमेंट स्टेशन जो भी हमारा पीसी वगैरह है, इससे कंसोल लगा के, ऑक्सिलरी पोर्ट को यूज करके, टेलनेट करके, SSH करके हमें इसका फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट लेवल एक्सेस लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर हमें इस डिवाइस का मैनेजमेंट करना है तो इसका मैनेजमेंट एक्सेस हमें अलग से लेना पड़ेगा यूजिंग अगेन आपका कंसोल, ऑक्सिलरी या जो भी आपका मेथड रहे। तो एवरी डिवाइस हैज टू बी मैनेज्ड इंडिपेंडेंट टू अदर डिवाइस, मतलब हर एक डिवाइस को आपको अलग अलग मैनेज करना पड़ेगा। व्हाई? Because every device has its own set of management plane. इस डिवाइस के मैनेजमेंट फंक्शंस आपके इस डिवाइस का मैनेजमेंट प्लेन परफॉर्म करेगा, इस डिवाइस के मैनेजमेंट फंक्शन आपके इस डिवाइस का मैनेजमेंट प्लेन परफॉर्म करेगा। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। सिमिलर वे में यहां पे आपने OSPF चला दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अपने आप OSPF चल जाएगा, आपको दोनों पे जाके OSPF चलाना पड़ेगा, आपको दोनों पे जाके प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा, तब जाके वो दोनों प्रोटोकॉल्स आपस में मैसेजेस भेजेंगे, तब जाके वो अपनी अपनी टेबल्स वगैरह बिल्ड करेंगे। तो ऐसा नहीं कि राउटिंग जब हम करने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक डिवाइस पे आपका राउटिंग कर दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं। बिकॉज एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन सेट ऑफ कंट्रोल प्लेन। ये अपनी राउटिंग टेबल को लुकअप करेगा, ये अपनी राउटिंग टेबल को लुकअप करेगा, इसकी राउटिंग टेबल में जो एंट्रीज हैं वो थोड़ी ना लुकअप करेगा, इसकी राउटिंग टेबल में जो एंट्रीज हैं वो थोड़ी ना लुकअप करेगा। सिंस एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन सेट ऑफ कंट्रोल प्लेन, हमें हर एक डिवाइस पे उनकी रिस्पेक्टिव टेबल चाहिए। एज अ रिजल्ट हमें हर एक डिवाइस पे जा जाके वो आपके जो कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल्स हैं सच एज OSPF, EIGRP, ये सब हमें रन कराने पड़ेंगे ताकि टेबल्स बनाई जा सके। एंड देन वी हैव द डेटा प्लेन। डेटा प्लेन मतलब जो एक्चुअल में डेटा फॉरवर्डिंग करने का काम है। ऑब्वियसली जो हमारा पहला राउटर है ये अपनी कंट्रोल प्लेन एंट्रीज को, अपनी जो हमारी कंट्रोल प्लेन टेबल है, अपनी जो राउटिंग टेबल है, अपनी जो ARP कैशे है, इसको देख के डेटा फॉरवर्ड करने का काम करेगा। तो डेटा प्लेन फंक्शंस अगेन आर हैंडल्ड बाय द डिवाइस इटसेल्फ। डेटा प्लेन फंक्शंस ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपका पैकेट यहाँ पे आया और यहाँ से ऐसा नहीं होगा। जो पैकेट आपके राउटर 1 पे आया वो पैकेट राउटर 1 से ही जाएगा। तो एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन सेट ऑफ द डेटा प्लेन। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है तो यही दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आपके हर एक डिवाइस का अपना अपना कंट्रोल प्लेन है, अपना अपना मैनेजमेंट प्लेन है और अपना अपना डेटा प्लेन है। दैट्स हाउ अ डिवाइस इज, दैट्स हाउ दीज traditional WAN routers are. That is how we install these devices in our infrastructure. हमारे जो routers हैं, हमारे जो switches हैं, इन सभी का अपना अपना कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, डेटा प्लेन रहता है। इसलिए हमें हर एक डिवाइस को इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर, मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि ओके है, ओके था, आई वुड से ओके था,
कोई दिक्कत नहीं है। आपके एक एंटरप्राइज नेटवर्क में, आपके एक सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में आपका ओके है, ठीक है, मतलब आप जो है इंडिविजुअली डिवाइस को मैनेज कर रहे हो, कोई इशू नहीं। बट जिस हिसाब से आपका वैन चेंज हुआ, मतलब ट्रेडिशनल वैन वाज ओनली, अगर हम ट्रेडिशनल वैन के हिसाब से अगर हम बात करें, जो लेगेसी आपका है, लेगेसी तो खैर अभी नहीं कहेंगे, ट्रेडिशनल ही बोलना ठीक रहेगा। लेगेसी का मतलब होगा कि ये खत्म ही हो गया है। तो ट्रेडिशनल वैन जो आपके पास है, ट्रेडिशनल मतलब जो हम यूज करते हैं वैन, उसका काम क्या? ट्रेडिशनल वैन का काम होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल एक एज डिवाइस को दूसरी एज डिवाइस से कनेक्ट करे विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स, with the help of variety of transport such as internet, transport such as maybe MPLS, 4G LTE, मेट्रो इथरनेट, तरह तरह के ट्रांसपोर्ट को यूज करके आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करे। Traditional WAN only focuses on connecting your data center, headquarter, branches, and all those things all together. But the WAN has changed a lot nowadays. Like मतलब पहले के टाइम पे जिस तरीके से आपके वैन का यूज केस लिया जाता था, आज के टाइम पे उसी वैन का यूज केस कुछ अलग तरीके से लिया जाता है। वैन हैज इवॉल्व्ड एक्चुअली अ लॉट। इनफैक्ट इतना इवॉल्व हो गया कि आपका जो ट्रेडिशनल वैन जो आपके पास है, जो ट्रेडिशनल वे है आपके वैन एज या वैन को डिप्लॉय करने का, वैरायटी ऑफ चीजों को, वैरायटी ऑफ फंक्शंस को मैनुअली कॉन्फ़िगर करने में काफी इश्यूज, काफी हेडेक आपको देखने को मिलेगी। एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक बहुत छोटे से एग्जांपल की बात करें, तो लेट्स एज्यूम कि फॉर एग्जांपल यू हैव टोटल 50 ब्रांचेस, टोटल 50 आपके पास ब्रांचेस हैं, 2 आपके पास लेट्स से डेटा सेंटर है और एक लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका हेडक्वार्टर है। इनको आपको आपस में इंटरकनेक्ट करना है। हर एक ब्रांच पे आपने एक या 2 आपने क्या लगा रखे हैं, ये अपने वैन एज राउटर लगा रखे हैं। लैन पे क्या चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल फिलहाल वैन पे फोकस करना है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 डेटा सेंटर्स हैं। इन 2 डेटा सेंटर्स पे अगेन हमने कम से कम 2 राउटर तो लगा ही रखे हैं रिडंडेंसी पर्पस के लिए, और कुछ हमारे यहाँ पे हेडक्वार्टर नेटवर्क भी है, यहाँ पे चलो एक ही ले लेते हैं। या हो सकता है किसी ब्रांच में आपका केवल एक राउटर ही लगा हो, छोटी स्मॉल ब्रांच है, यहाँ पे केवल आपके पास एक राउटर लगा है, यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर है, यहाँ पे आपके 2 राउटर्स लगे हुए। इनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए आपने एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, या आप अगर आप बात करो तो एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सच एज आप एम्प्लिस की हेल्प ले सकते हो। आपने अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट किया, आपने अपने इस वैन सर्विस प्रोवाइडर सच एज एम्प्लिस वालों से कांटेक्ट किया, उनसे आपने कनेक्शंस लिए, उसके बाद आपने राउटिंग करवाई, उसके बाद आपने राउट्स एक्सचेंज करवाए। मतलब आपको वैरायटी ऑफ जो है कॉन्फ़िगरेशंस करने की जरूरत पड़ी इन सभी वैनेज डिवाइसेस पे। भले ही कॉपी पेस्ट ही क्यों ना करना हो, एक ब्रांच की कॉन्फ़िगरेशन उठा के दूसरी ब्रांच पे कॉपी पेस्ट ही क्यों ना करना हो, बट करना तो मैनुअली ही पड़ा। वैल्यूज को चेंज आपको एनीवे मैनुअली ही करना पड़ेगा। और अगर इंटरनेट को आप एज अ ट्रांसपोर्ट यूज करके अपने डेटा को सेंड करने की कोशिश करते हो तो 0% आपकी सिक्योरिटी वहां पे आपकी रहती है। तो इंटरनेट को जब हम फॉर एग्जांपल एमपीएलएस ट्रांसपोर्ट, तो फिर भी आपका कंपैरेटिवली सिक्योर कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इट्स नॉट शेयर्ड विद एवरीवन। MPLS services are available to only those who have subscribed for the MPLS services. But everyone has the access to the internet nowadays. तो इंटरनेट को अगर आप फॉर एग्जांपल एक ट्रांसपोर्ट यूज करते हुए अपने हेडक्वार्टर डेटा सेंटर ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करते हो तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, हम डीएम वीपीएन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 50 ब्रांचेस, 2 डेटा सेंटर और एक हेडक्वार्टर के बीच में डीएम वीपीएन आपको सेटअप करना है। उसके बाद डीएम वीपीएन में आपको कुछ टनल्स का कॉन्सेप्ट पता लगा, अंडरले का कॉन्सेप्ट पता लगा, ओवरले का कॉन्सेप्ट पता लगा, राउटिंग करवाई आपने डीएम वीपीएन में, अपना प्राइवेट ट्रैफिक सेंड करवाया, एक्सचेंज करवाया, सब बढ़िया चलने लगा। पता लगा सिक्योरिटी तो है ही नहीं डीएम वीपीएन में। डीएम वीपीएन तो बस आपको एक एबिलिटी देता है कि आप अपने एक प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड कर सको अप टू सेकंड नेटवर्क, बट देयर इज नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द डीएम वीपीएन। तो आपने फिर इस पे एडिशनली डीएम पिन के साथ साथ आपने आईपीसेक रन कराया, उसकी अलग कॉन्फ़िगरेशन करी, अपने डीएम पिन को आपने प्रोटेक्ट किया आईपीसेक से। जैसे जैसे आपका ये ब्रांचेस बढ़ती गई, डेटा सेंटर बढ़ता गया, वैसे वैसे आपके पास जो है कॉम्प्लेक्सिटी इसको मैनेज करने, कॉन्फ़िगर करने की भी बढ़ती गई। देन आया क्लाउड मार्केट में, देन आई आईओटी डिवाइसेस आपके मार्केट में, देन आए आपके BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, देन आया वर्क फ्रॉम होम। तरह तरह के आपके चैलेंजेस आपके धीरे धीरे आने वैन में शुरू हो गए। तो इट वॉज ओके, ट्रेडिशनल वैन वॉज ओके फॉर अ ट्रेडिशनल नेटवर्क, मतलब जो आपका पुराने टाइम का, जो अगर हम बात करें आज से 8-10 साल पहले की बात करें, तब तक के लिए ठीक था, दैट वाज ओके। We did not have like a lot of cloud concept, we did not have a lot of IoT things, we did not have a lot of like work from home, bring your own device concept, वो सब नहीं था इतने 10-15 साल पहले, इतना नहीं था, रहा होगा हमें पता नहीं था, बट इतना नहीं था।
बट नाउ डेज आज के मॉडर्न डे टाइम की अगर आप बात करो तो हर दूसरा कैंडिडेट आपका क्लाउड लर्न कर रहा है, बिकॉज दे नो दैट कि देयर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर कंपनी के सॉफ्टवेयर मतलब आपके क्लाउड पे मूव हो रहे हैं. देयर इज अ टर्म इन क्लाउड नोन एज बॉर्न इन द क्लाउड. पढ़ना कभी आप आगे. एप्लीकेशंस आपकी ऐसी बनाई जा रही हैं कि भाई वो क्लाउड पे ही रन करेंगे. इनफैक्ट क्लाउड पे ही बनाई जा रही है एप्लीकेशंस आपकी, आपके कंपनी की, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की. देयर आर सर्टेन एप्लीकेशंस दैट आर बॉर्न इन क्लाउड, दैट आर बेसिकली डेवलप्ड इन द क्लाउड, दीज आर डिप्लॉयड इन द क्लाउड इटसेल्फ. मतलब थिंग्स सच एज फॉर एग्जांपल ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हर एक मशीन पे लोकली इंस्टॉल्ड होता था, नाउ दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हैज आल्सो मूव्ड इनटू द क्लाउड कि भाई ऑफिस 365 ले लो सब्सक्रिप्शन, कहीं से भी बैठ के आप एक्सेस करो. Let's not even talk about like IoT, the sensors, the IoT devices, CCTV cameras, आपके IoT sensors तरह तरह के, humidity sensor, pressure sensor, आपके temperature sensors, आपके let's not even talk about those smart home appliances. मतलब छोड़ ही दो आप उनको. मतलब the way WAN has evolved actually, जिस हिसाब से आपका WAN evolved हुआ है, the traditional way of managing the WAN devices is basically not going to be enough. और एक एक डिवाइस को मैनुअली कॉन्फ़िगर करना, मैनुअली मैनेज करना, जस्ट बिकॉज कि उनका अपना अपना अलग कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, डेटा प्लेन है, इट एड्स एन एडिशनल चैलेंज, इट एड्स एन एडिशनल ओवरहेड, एन एडिशनल हेडेक. अच्छा, ये बात आपकी डेटा सेंटर में कुछ ज्यादा ही थी. एक डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, डेटा सेंटर आपके जो नेटवर्क होते हैं, आइडली दोज नेटवर्क्स आर बिल्ट अराउंड सर्टेन एप्लीकेशंस दैट दे सर्व. डेटा सेंटर आपके किसी एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाता है. मतलब आपका जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक का डेटा सेंटर है, वैसे गूगल का डेटा सेंटर है. तो गूगल की जो वैरायटी ऑफ सर्विसेज रन कर रही हैं, लाइक उन सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए आपके डेटा सेंटर्स गूगल के बनाए गए. मे बी आपकी फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंस एप्लीकेशन है, या आपकी कुछ सर्टेन एप्लीकेशंस है, बहुत बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं जो आपकी जो है रन करनी है. तो वी आर गोइंग टू रन दोज एप्लीकेशंस इन अ सर्वर, इन अ डेटा सेंटर एनवायरनमेंट. तो डेटा सेंटर्स टिपिकली आपके जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो आपके एप्लीकेशन सेंट्रिक होते हैं. एप्लीकेशन सेंट्रिक होने का मतलब क्या है कि डेटा सेंटर्स आपके आइडली दीज आर बिल्ट अराउंड द एप्लीकेशंस दैट दे सर्व. डेटा सेंटर नेटवर्क्स आपके उस एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं जिस एप्लीकेशन की सर्विसेज वो प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन है, जिस एप्लीकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है. एप्लीकेशन सच एज फाइनेंशियल एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल वगैरह की बात करें तो गूगल की सर्विसेज, फेसबुक सर्विसेज, लिंक्डइन सर्विसेज, तरह तरह के आपके डेटा सेंटर्स. डेटा सेंटर अगर हम बात करें, डेटा सेंटर्स आर आल्सो नोन एज ACI डेटा सेंटर्स, एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ACI data center. ACI data centers means like data centers built around the applications that they are supposed to serve. अब ACI data center में we use a different kind of topology from the design point of view. In an enterprise network we use 2-tier design. In an enterprise network we use 3-tier design. Core layer, distribution layer, इन सबको हम यूज करते हैं. Access layer होती है, then distribution layer होती है, then core layer होती है, then internet edge, then WAN edge. तरह तरह की आपकी जो है डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एंटरप्राइज नेटवर्क में लेयर होती है. डीसी में कभी जब आप पढ़ोगे जाके, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बट डीसी में जब कभी आप पढ़ोगे जाके तो वहां पे समथिंग कॉल्ड स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर आपके पास चलता है, वेयर वी हैव लाइक सम स्पाइन स्विचेस, सम लीफ स्विचेस, मतलब आपके जो है आपस में इंटरकनेक्टेड एक डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर वहां पे चलता है, राइट. तो वहां पे आपके पास तरह तरह के आपके सर्वर्स लगे हुए हैं. वर्चुअलाइजेशन का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वहां पे, वर्चुअलाइजेशन, जहां पे आप बड़े बड़े सर्वर्स में आप जो है वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके, ESXi हो गया आपका, VMware, या आपका जो है अदर Hyper-V हो गया, या जो भी आपके वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके आप वर्चुअल मशीन्स बना के आप वहां पे तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो. वहां इन सब चीजों को मैनेज करना और टफ है. तो एक ACI डेटा सेंटर, मतलब जो ACI जो आपका डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर के जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने सोचा कि क्यों हम मैनुअली करें सारा काम. इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने इस ACI डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए हम किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प लें. मतलब लेट्स नॉट लाइक डू एवरीथिंग फ्रॉम लाइक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, लाइक सब मैनुअली ना करें. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट सम सॉफ्टवेयर्स. Let's create some softwares, and those softwares are intended to handle our ACI data center. तो उन्होंने काम करना शुरू किया कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे जो सॉफ्टवेयर हमारे ACI डेटा सेंटर को, एक डेटा सेंटर को मैनेज कर सकें.
एंड अगेन अब ऐसा नहीं कि केवल सब सिस्को नहीं किया, देयर वर अदर वेंडर्स एज वेल, सभी वेंडर्स ने कुछ मिल के काम किया या सबने आपका अलग अलग काम किया, जैसा भी था। तो दे केम अप विद अ सॉल्यूशन, दे केम अप विद अ सॉल्यूशन, बनाया, वेंडर्स ने अपने अपने सॉल्यूशंस बनाए, वेंडर्स ने अपने अपने सॉल्यूशंस बनाए जिनको यूज करके वो अपने अपने डेटा सेंटर को रिस्पेक्टिवली हैंडल कर सकते थे। दो सॉफ्टवेयर्स, जो सॉफ्टवेयर आपके फॉर एग्जांपल एक एसीआई डेटा सेंटर को मैनेज करने का काम करते हैं, दो सॉफ्टवेयर्स आपके अलग अलग वेंडर्स ने आपके बनाए। अब सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं तो आप डिप्लॉय करोगे ना, सॉफ्टवेयर रन कहां करेगा, सॉफ्टवेयर तो आपने कोड कर लिया, बट फॉर दिस सॉफ्टवेयर टू रन वी नीड सम हार्डवेयर। तो करा दिया हमने एक सर्वर पे रन, एक सर्वर है हमारा, बहुत अच्छे रिसोर्स का एक सर्वर है, बड़ा सा एक सर्वर है, ये हमारा एक HP डेल या किसी का एक बड़ा सा सर्वर है, अच्छे खासे रिसोर्स हैं इसमें, इसमें 512 GB की रैम है, इसमें आपके पास 4-6 TB की इसमें SSD लगी हुई है, इसमें आपके पास 40-80 कोर्स हैं, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत हाई कैपेसिटी का सर्वर है। इस पे हमने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया। अब ये सर्वर हमने कनेक्ट कर दिया अपने ACI डेटा सेंटर पे, ये सर्वर हमारा इंटरेक्ट कर सकता है हमारे डेटा सेंटर की सभी डिवाइसेस के साथ, डिवाइसेस सच एज फॉर एग्जांपल हमारे स्विचेस वगैरह के साथ। और हम यहाँ पे जो इस सर्वर का जो यूजर इंटरफेस है, हम इसका GUI एक्सेस ले लेंगे, कौन कमांड से चला है सारी चीजें, हम इसका GUI एक्सेस ले लेंगे, इस सॉफ्टवेयर का जो हमने बनाया, ये सॉफ्टवेयर हमें GUI एक्सेस देता है, GUI एक्सेस ले लेंगे और यहीं से बैठ के हम अपने सारे डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं। ये सर्वर जहां पे आपकी ये सॉफ्टवेयर की इमेज पड़ी हुई है, सर्वर मतलब आपकी वो डिवाइस जहां पे आपके सॉफ्टवेयर की इमेज जो आपने डेवलप करवाई, जो करी आपने, वो पड़ी हुई है, इसी को आपके टेक्निकल टर्म में इन्होंने बोला एक कंट्रोलर। तो कंट्रोलर बेसिकली इज जस्ट अ हार्डवेयर रनिंग अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर responsible to manage a number of devices. In this case, of the data center. डेटा सेंटर की n नंबर ऑफ डिवाइसेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर जिस हार्डवेयर पे हमने इंस्टॉल किया, जिस हार्डवेयर पे हमने रन कराया, all along with that it is what we refer to as a controller. जैसे एपिक उसका नाम है, इस कंट्रोलर का नाम क्या है आपका, एपिक। अदर वेंडर ने कुछ अपना अलग बनाया होगा, OpenSDN सॉल्यूशन, ऑपफ्लेक्स, मतलब अदर की हमें बात ही नहीं करनी। एपिक जो नाम का कंट्रोलर है, एप्लीकेशन पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोलर, एपिक नाम का जो कंट्रोलर है, ये आपके ACI डेटा सेंटर को हैंडल करने का काम करता है। घूम फिर के मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि ये बस एक सॉफ्टवेयर है, इट इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर इमेज दैट रन्स ऑन अ पर्टिकुलर हार्डवेयर which is responsible to manage the resources, manage the infrastructure of your data center. डाउनलोड कर लो आप इसको सिस्को की वेबसाइट पे जाके, इसको आप सिस्को की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करो और अपने वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में आप इसको रन कराओ, पढ़ो इसके बारे में, एंड यू विल बी एबल टू मैनेज द ACI डेटा सेंटर फ्रॉम दिस कंट्रोलर, फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर एपिक, एप्लीकेशन पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोलर। इसमें इस एपिक कंट्रोलर का इसका हम GUI एक्सेस लेते हैं, यहाँ पे हम अपने एंड पॉइंट के लिए हम अपनी पॉलिसीज वगैरह डिफाइन करते हैं, जो भी है, खैर इतना हमें डिटेल में लिया। पॉइंट ये है कि ये अच्छा सॉल्यूशन था, ओवरऑल पॉइंट ये है कि आपका एक अच्छा सॉल्यूशन था, एक अच्छा एडिशन था कि सॉफ्टवेयर को यूज करके आपके डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, ये एक बहुत मतलब आपका काइंड ऑफ, अगर हम बात करें, एक बढ़िया स्टेप, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप टाइप का, और काफी अच्छा आपका ये सोल्यूशन चला। याद रखना हम सिस्को की बात कर रहे हैं, अदर वेंडर में जो होता होगा बढ़िया सोल्यूशन था ये। ACI डेटा सेंटर, सिस्को ACI डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए एपिक नाम का कंट्रोलर जो बनाया गया, बहुत बढ़िया चला, अभी भी चलता ही है, चल ही रहा है अभी भी। इतना अच्छा चला कि इन्होंने सोचा कि भाई यही क्यों ना हम अपने एंटरप्राइज में भी इंप्लीमेंट कर दें। इन्होंने सोचा कि यही हम क्यों ना अपने एंटरप्राइज में भी इंप्लीमेंट करें, अपने एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए भी क्यों ना हम इसी तरह के कुछ सोल्यूशन पे काम करें। तो बनाया इन्होंने उसी एपिक का, इन्होंने एपिक APIC, एक उसी एपिक का इन्होंने एक एंटरप्राइज मॉड्यूल बनाया एपिक EM के नाम से, जो कि आपके टारगेटेड था एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए, एपिक EM, एपिक एंटरप्राइज मॉड्यूल। अनफॉर्चुनेटली आपका ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया एंटरप्राइज नेटवर्क में। जिस टाइम पे आपका एपिक EM लॉन्च किया गया, उस टाइम पे आपके एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए आपका ये सोल्यूशन इतना फिजिबल, इतना पॉसिबल, इतना अच्छा लोगों को नहीं लगा। मतलब इट डिड नॉट गेन as much popularity as this epic actually got.
धीरे 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 इन्होंने इस एपिक ईएम को सेल करना बंद कर दिया और ऑफिशियली आपका एपिक ईएम जो कंट्रोलर है वो ऑब्सोलीट हो गया। अदर सॉल्यूशन भी थे, अदर सॉल्यूशंस भी आए इनके, जैसे आपका आया एक सिस्को का प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी भी काफी टाइम तक चला, सिस्को पीआई प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपके पास था। ये एपिक ईएम सर लैन वैन दोनों मैनेज करता था? नहीं, अब हाँ, एपिक ईएम जो आपका टारगेटेड था, जो आपका बनाया गया था, ये आपके मेजरली लैन के लिए था, जो लैन इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो आपके स्विचेस वगैरह लगे हुए होते थे, क्योंकि एपिक से टारगेटेड था ना ये। एपिक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनली मैनेज करने का काम करता था ना, तो ये लैन मेजरली सॉल्यूशन जो ये था एपिक ईएम, ये आपके लैन पॉइंट ऑफ व्यू से था। देन लाइक प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका प्रोडक्ट था वो काफी पॉपुलर था, तो मतलब एपिक ईएम को इतनी पॉपुलैरिटी कभी मिली ही नहीं एक्चुअली। सो प्राइम तो शायद डब्ल्यूएलसी वगैरह के लिए था। हाँ, प्राइम आपका और भी प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, क्योंकि एंटरप्राइज में तो आप यूज करोगे ना, एंटरप्राइज नेटवर्क में आप वायर्ड भी यूज करोगे, वायरलेस भी यूज करोगे, राइट। प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, और एपिक ईएम में इतनी कैपेबिलिटी थी नहीं, तो प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका कंट्रोलर था, जो प्रोडक्ट था, जो सॉल्यूशन था, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आपके एंटरप्राइज नेटवर्क को मैनेज करने का, सिमिलर टू एपिक, प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ज्यादा पॉपुलर था एज कंपेयर टू दिस एपिक ईएम। पीआई में प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और अभी भी अगर हम बात करें, अभी कुछ सालों पहले तक, इनफैक्ट अभी भी आपको प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वाइडली आपके एंटरप्राइज नेटवर्क में देखने को मिलेगा। अब एक्चुअल में जब 2013-14 में आई थिंक, या 15 में, एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को, उस टाइम पे एक और सॉल्यूशन आपका मार्केट में आया। उन्होंने कहा आप लैन पे फोकस कर रहे हो, लैन पे आप फोकस कर रहे हो, आप लैन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए आपने बना दिया एपिक ईएम, प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो, वैन की कौन करेगा बात? हम अपने एंटरप्राइज नेटवर्क को वाया दिस ट्रांसपोर्ट हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपने हेडक्वार्टर से, डेटा सेंटर से, उन पे भी तो चैलेंजेस आ रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, डीएम इंटरनल बनानी पड़ रही है, आईपीसेक कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है, 50 तरह के चैलेंजेस हैं, एम प्लस बहुत कॉस्टली है, तो वैन की कौन बात करेगा? तब जैसे लैन पे फोकस था, वैसे ही आपके वैन पे भी फोकस था। ऐसा नहीं कि वैन पे फोकस नहीं था, वैन के लिए भी आपके पास, अगर हम सिस्को की बात करें, तो सिस्को ने आपका एक सॉल्यूशन तैयार किया था। सिस्को ने एक, हम याद रखना, हम जरा सिस्को के बारे में बात करें, हम सिस्को की अगर बात करें, तो सिस्को ने आपका एक सॉल्यूशन तैयार किया था, जिसको इन्होंने कहा था आई वैन, इंटेलिजेंट वैन। आई वैन, इंटेलिजेंट वैन आपका, इसकी जो देखो, अगेन हमें आई वैन की बात नहीं करनी, ठीक है, और ये आपका एंड ऑफ लाइफ अनाउंस कर दिया गया है। आई वैन जो आपके पास है, आई वैन आपका डीएमवीपीएन, इसकी जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी थी ना, ये डीएमवीपीएन थी। ये बहुत पहले से आ रहा है, 15 से आ रहा है आपका ये, पहले, उससे पहले भी हो सकता है, उससे पहले तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। तो अभी मानते चलो लगभग 2015 के आसपास आपको, 15-16 में आपको ये आई वैन नाम की टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलरली आपको देखने को मिलती। और ये काम, इसका जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, ये पूरा डीएमवीपीएन था। थोड़ा ऐसा कहते हैं स्मार्ट डीएमवीपीएन टाइप जो है, मतलब डीएमवीपीएन टेक्नोलॉजी को ही यूज करता था। डीएमवीपीएन टेक्नोलॉजी को यूज करके आपका ये जो है कुछ मतलब इनहैंसमेंट्स वगैरह करके आपका ये आई वैन टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च करी थी, और काफी चला, मतलब काफी पॉपुलैरिटी इसने आपका मतलब किया। जो बेस टेक्नोलॉजी है आई वैन की ना, ये डीएमवीपीएन है। उसमें हम अपने क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें हम ये ना, एक होता है पीएफआर, परफॉर्मेंस राउटिंग, परफॉर्मेंस राउटिंग वर्जन 3, वर्जन 2 जो भी था आपके, उनको हम यूज करके, मतलब बेस टेक्नोलॉजी आपकी ये थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास आई वैन आपका इवॉल्व होता गया, फिर उसमें आई आपकी एप्लीकेशन विजिबिलिटी एंड कंट्रोल, उसमें फिर आपके आया वाइड एरिया ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज आपकी आ गई, वाइड एरिया एप्लीकेशन सर्विसेज आपकी आ गई। करते 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 मतलब आई वैन आपका काफी अच्छा एक सोल्यूशन बन गया आपके इस एसडी वैन के पहले अगर हम बात करें, तो आई वैन आपका एक अच्छा खासा, एक बढ़िया सोल्यूशन आपका बन गया। बस इसकी जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी थी वो आपकी डीएमवीपीएन थी। अंडरलाइन जो टेक्नोलॉजी आपके आई वैन की थी, ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग सोल्यूशन था, ये एसडीएन सोल्यूशन था आपका। बस इसकी जो अंडरलाइन जो टेक्नोलॉजी थी, ये आपका ये थी, क्या नाम है आपकी, डीएमवीपीएन।
ठीक है, मतलब ये आपका, आप ऐसे मानते हुए चलो कि आपका वही सेम जो एडवांटेज आपको डीएमपी में मिलते हैं वैसे ही मिलते जुलते एडवांटेजेस आपको जो है आईबैन में देखने को मिलते हैं। और उसी टाइम पे एक कंपनी थी 2017 के आसपास ही, एक मतलब वैसे तो पहले से थी, विप्टेला नाम की एक कंपनी थी। आईवैन की तरह ही आपके विप्टेला नाम की एक कंपनी थी। विप्टेला आपका जो है ये एसडी वैन सोल्यूशन प्रोवाइड करती थी। विप्टेला का जो एसडी वैन था, ये विप्टेला जो कंपनी थी, ये कंपनी आपकी जो है अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करती थी। आई गेस 2013 या 14 में आई थी ये कंपनी। विप्टेला नाम की जो कंपनी थी 2012 में आई थी विप्टेला। 2012 में आपकी विप्टेला लॉन्च हुई थी और उन्होंने बनाए थे 2013 वर्टीन में उन्होंने अपने ये वीएच डिवाइसेस बनाई। वैन एज एक आपका वीएच विप्टेला एज डिवाइस बनाई, उस पर उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम, और बनाया कंट्रोलर, वही सेम कंट्रोलर, और हमें ये एबिलिटी दी कि अगर आप इन वीएस डिवाइसेस को अपने वैन पे लगाते हो तो इन सभी वैन डिवाइस का एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के कंट्रोलर से मैनेजमेंट कर सकते हो। 12-13 में लॉन्च हुआ है, धीरे धीरे पॉपुलर हुई। मतलब जो है वैन जो आपके जैसे सिस्को वाले आई वैन रन कराते थे, वैसे आपका विप्टेला आपका ये रन करा रहा था अपना वीएच, वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी बॉन्ड, ये सब रन करा रहा था। तरह तरह के इनके राउटर होते थे, वीएच लाइक 100,000 वगैरह राउटर आते थे इनके। 2017 में सिस्को ने देखा कि विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम, विप्टेला जो हमारा सॉल्यूशन है, ये थोड़ा मतलब काफी पॉपुलर हो रहा है। तो सिस्को ने क्या नाम है 2017 में मिड 2017 में अगस्त के आसपास जो है 2017 में इन्होंने अपना एक्वायर किया विप्टेला एसडी वैन को। विप्टेला एसडी वैन को उन्होंने एक्वायर कर लिया 2017 में, कुछ 600 कुछ मिलियन डॉलर वगैरह का कुछ था इनका। तो मतलब जो है उन्होंने विप्टेला एसडी वैन एक्वायर कर लिया और उन्होंने कहा कि अब ये है सिस्को एसडी वैन विप्टेला 2017 में। और उसी टाइम पे कंफर्म हो गया था कि भाई नाम तो चेंज करेंगे, आज नहीं कल तो करेंगे। फिर उन्होंने पिच करना स्टार्ट किया कि आप आईवैन मत यूज करो, अब आप यूज करो हमारा एसडी वैन विप्टेला यूज करो, विप्टेला एसडी वैन यूज करो, मीडियम टू लार्ज स्केल एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए अच्छा सोल्यूशन है। और उन्होंने पिच करना शुरू किया, लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। 18, 19, 20 तक बहुत पॉपुलर हो गया, 20 में तो बहुत पॉपुलर हो गया। जिस टाइम पे आपका ये सिस्को ने अपने कंटेंट में चेंजेस अनाउंस करे, उस टाइम पे 2020-21 में बहुत पॉपुलर हुआ विप्टेला एसडी वैन यूज केस, क्योंकि वर्चुअलाइज है सारा, लोग अपने वर्चुअलाइज सोल्यूशन में इसकी टेस्टिंग कर पा रहे थे, सब टेस्ट कर रहे थे कि सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं, एंड देन उसके यूज केस को देखते हुए उन्होंने अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसको यूज करना शुरू कर दिया। बाद में फिर आपके बाकी के वेंडर पालो अल्टो, फोर्टिगेट, आपके ये अदर वेंडर्स की अगर हम बात करें, और कौन से एसडी वैन में और भी आते हैं ना, वेलो क्लाउड हो गया वीएमवेयर का, ठीक है, वर्सा एसडी वैन हो गया, और वेंडर भी आ गए। सिल्वर पीक है, सिल्वर पीक का एसडी वैन है। तो पॉइंट ये है कि आपका एसडी वैन करता क्या, एसडी वैन का जो बेस कॉन्सेप्ट है वो एकदम आपके वो जो आपके डीसी का जो एपिक जो कंट्रोलर काम करता था लैन के लिए, एसडी वैन जो आपके पास है, एसडी वैन आपको ये एबिलिटी देता है। एसडी वैन आपको ये एबिलिटी देता है कि आप एक्चुअल में अपने जितने भी वैनस डिवाइसेस हैं, लैन पे फोकस करने के लिए हमारे पास अलग प्रोडक्ट्स हैं। लैन पे फोकस करने के लिए हमारे पास एपिक है, एपिक ईएम था, हमारे पास प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आज के टाइम पे हमारे पास डीएनए सेंटर है। डीएनए सेंटर इज जस्ट रीब्रांडेड, रिपर्पस्ड एपिक ईएम। एपिक ईएम में ही इन्होंने एश्योरेंस यानी कि मॉनिटरिंग के फीचर डाल के इन्होंने डीएनए सेंटर नाम का एक कंट्रोलर बना दिया, कैटलिस्ट सेंटर, जिसको उन्होंने रीनेम किया है रिसेंटली। तो डीएनए सेंटर आपका एक काफी पॉपुलर प्रोडक्ट अभी चल रहा है, अभी एक 1000i और आ गया है। मतलब पॉइंट ये है कि इन्होंने लैंड के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस बना रखे हैं। वैन के लिए जो इनका जो सबसे पॉपुलर सॉल्यूशन है वो है आपका एसडी वैन। एसडी वैन आपका क्या करता है, आपको ये एबिलिटी देता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है इसको ना यूज करके हम एक सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर की तरफ से, एसडी वैन हमें ये एबिलिटी देता है कि अगर आपके हेडक्वार्टर ब्रांचेस में मान लो 50, 100, 200 डिवाइसेस लगी हुई हैं, मतलब यू कैन स्टिल मैनेज ऑल दीज डिवाइसेस इंडिविजुअली, करना चाहो आप कर सकते हो, बट एसडी वैन गिव्स यू द कैपेबिलिटी कि आप इन सभी डिवाइसेस को आप एक जगह से बैठ के कंट्रोल, एक जगह से बैठ के मैनेज कर सको।
और जहां से बैठ के आप मैनेज करोगे, कंट्रोल करोगे, उसी को कहते हैं कंट्रोलर। एसडी वैन आपका क्या नाम है, आपको एक कैपेबिलिटी देता है कि आप एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के, मे भी अपने डेटा सेंटर से फॉर एग्जांपल बैठ के आप ये सभी डिवाइसेस को आप मैनेज कर सको, एक सेंट्रलाइज वे में बैठ के मैनेज कर सको। जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो भी आपको पॉलिसी लगानी है, जो भी आपको मॉनिटरिंग करनी है, सब डे 0, डे 1, डे 2 सारे के सारे काम आप फॉर एग्जांपल एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के कर सकते हो। तो सेंट्रलाइज्ड क्या होगा एसडीवैन में? एसडीवैन में क्या होगा कि हमारा जो मैनेजमेंट प्लेन है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, और जो हमारा कंट्रोल प्लेन है वो भी सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। मतलब वी विल नो लॉन्गर एक्सचेंज द राउट्स फ्रॉम राउटर टू राउटर डायरेक्टली, नहीं, वी विल नो लॉन्गर मैनेज इंडिविजुअल डिवाइसेस वन बाय वन, नहीं। एक सेंट्रलाइज्ड, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आपके हर एक डिवाइस का अपना अपना कंट्रोल प्लेन, अपना अपना मैनेजमेंट प्लेन नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी डिवाइस स्टिल हैज, सबके पास अपना अपना मैनेजमेंट प्लेन, सबके पास अपना अपना कंट्रोल प्लेन, सबके पास अपना अपना डेटा प्लेन अभी भी है। इट इज जस्ट विद द हेल्प ऑफ द SD-WAN, इट्स जस्ट विद द हेल्प ऑफ SD-WAN वी गेट द कैपेबिलिटी, वी गेट दिस ऑप्शन, वी गेट दिस कैपेबिलिटी कि हम इन सभी डिवाइसेस का एक जगह से बैठ के मैनेजमेंट करें, एक जगह से बैठ के कॉन्फ़िगरेशन पुश करें, एक कॉमन राउटिंग पॉलिसी, एक कॉमन आपके पास राउटिंग टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशंस हम एक जगह से बैठ के कर सकें। तो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्लेन, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन और डिस्ट्रीब्यूटेड, सबका अपना अपना डेटा प्लेन तो रहेगा ही रहेगा। ऑफ कोर्स सभी का डेटा प्लेन थोड़ी ना सेंट्रलाइज्ड होगा, तो आपका अपना अपना डेटा प्लेन है। एवरीवन हैज देयर ओन सेट ऑफ टेबल्स जिसको यूज करके वो आपके पैकेट की फॉरवर्डिंग करेंगे। तो मैं ये नहीं कर रहा कि सब एकदम ही मतलब मैनेजमेंट प्लेन होएगा ही नहीं। इट्स नॉट लाइक व्हाट इज दैट, वायरलेस में क्या होता है वो, अरे लाइट वेटेड एक्सेस पॉइंट, इट्स नॉट दैट LWAP, ये आपके पॉइंट नहीं है जिनको आपको कंट्रोलर से बाइंड करना ही पड़ेगा तभी काम, ऐसा कुछ नहीं है। दीज डिवाइसेस कैन स्टिल ऑपरेट इंडिविजुअली। सो सर लाइक इवन इफ अगर वो वी मैनेज से मैनेज नहीं होता, सो दैट वी कैन से कि वो डिवाइस का मैनेजमेंट प्लेन और डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन भी अलग है, लोकल है उनका, बिल्कुल। आप, मैं तो कह रहा हूँ आप एक राउटर खरीद के लाओ, आप एक SD-WAN राउटर परचेज करके लाओ, और आप उसको मतलब जो है कंट्रोलर से कनेक्ट मत करो, आप फिर भी इस राउटर पे जाके आप राउटिंग एंड एवरीथिंग के फंक्शन रन करा सकते हो। क्या होगा, ज्यादा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, सेंट्रलाइज पॉलिसीज डिप्लॉय नहीं हो पाएंगी, बट लोकल मैनेजमेंट एंड लोकल आपका वो राउटर अभी भी राउटिंग में काम करेगा, राउटिंग में पार्टिसिपेट अभी भी करेगा, और हम करके देखेंगे अपने टोपोलॉजी में। ओके, सो ये SD-WAN वाले राउटर्स अलग आते हैं? हाँ, मतलब अलग आते, अब इसको कनेक्ट करके अगर हम बोले अलग आते थे। जैसे VH डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं तो हाँ, ये VH विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो आपकी एस डिवाइसेस आती थी, ये आपकी अलग आती थी, ये आपके अलग प्लेटफॉर्म होते थे, इन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो आपका विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, ठीक है। उस पे कमांड्स अलग तरीके से चलती थी, CLI काफी हद तक सिस्को से मिलता जुलता था, बट द वे दे यूज्ड टू ऑपरेट इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द क्लासिक राउटर्स। तो हाँ, मतलब अलग ही रहते हैं। अब मॉडर्न डे नेटवर्क में आपके जो VS डिवाइसेस का यूज केस है ये बहुत ज्यादा नहीं होता। मॉडर्न डे नेटवर्क में सिस्को रिकमेंड करती है, क्योंकि since they acquired like Viptela, obviously मतलब it was like almost 100% certain कि भाई आज नहीं कल तो Viptela ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा ही देंगे, because then otherwise दो OS हो जाएंगे, एक Viptela अलग और Cisco अलग। तो now what Cisco did actually, उन्होंने अपने जो इनका जो existing iOS XE चलता है, iOS XE जो आपका इनका जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी में इन्होंने क्या किया, SD-WAN कैपेबिलिटीज आपके पास ऐड कर दी, एंड दे क्रिएटेड दिस iOS XE SD-WAN। तो आज के टाइम पे जो आपकी और इन जिन भी डिवाइसेस पे आपका ये iOS XE SD-WAN चलता है, इनको हम कहते हैं CS डिवाइसेस, सिस्को आपकी जो S डिवाइसेस हैं वो। तो राउटर डिवाइसेस वही हैं आज के टाइम पे, मतलब वी हैव द ऑप्शन टू ईदर परचेज कंप्लीटली न्यू डिवाइसेस, अदरवाइज जो हमारे एग्जिस्टिंग जो CSR, हमारे जो एग्जिस्टिंग ISR, हमारे एग्जिस्टिंग जो ASR सीरीज के राउटर हैं, इन पे हम क्या कर सकते हैं, इनका जो सॉफ्टवेयर है हम इसको अपग्रेड करके इस पे ले जाएं XE SD-WAN पे, और देन हम मतलब SD-WAN कैपेबिलिटीज का फायदा ले सकते हैं। और बेस्ट चीज क्या है कि आज के टाइम पे दो अलग अलग इमेजेस भी नहीं आती हैं। पहले क्या होता था, iOS XE की अलग इमेज आती थी और XE SD-WAN की अलग इमेज आती थी। आज के टाइम पे एक इमेज आती है, यूनिफाइड इमेज कहते हैं उसको, और वो यूनिफाइड इमेज आपके पास जो रहती है उसमें दोनों फंक्शंस हैं, उसमें आपके SD-WAN के भी फंक्शंस हैं और उसमें ट्रेडिशनल XE वाले राउटर के भी फंक्शन है। इट्स नाउ अप टू यू
कि आप कैसे बूट कराते हो। एक कमांड है बेसिकली, उस कमांड को रन करा के या तो अपने डिवाइस को आप XC पे बूट करा लो या तो आप XC SD-WAN पे बूट करा लो। तो वी डोंट इवन हैव टू इमेजेस नाउअडेज, एक कॉमन इमेज चल जाएगी। तो मतलब अब इसको आप देखो कैसे आंसर करोगे कि मतलब XC और XC SD-WAN दो अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, बट डिवाइस आपकी सेम है। यस सर, गॉट इट। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई डिवाइस है आपका XC पे रन कर रहा है और आपको हाँ। उसमें अभी SD-WAN डालना है, हाँ, तो तो आपको बस एक आपने कमांड चलानी है। तो आपने जब उसको XC SD-WAN में हाँ। उससे मतलब OS अपग्रेड किया, हाँ। तो उसके बाद में जो iOS XC का जो कॉन्फ़िगरेशन था, क्या वो भी उड़ जाएगा? हाँ, नहीं वो चली जाएंगी वो, मतलब आपको अभी हम आगे पढ़ेंगे माइग्रेशन के उस पे। आपको मतलब डिवाइस की जो आप XC SD-WAN पे जब आप बूट कराते हो तो आपको जो है कॉन्फ़िगरेशंस का बैकअप वगैरह लेना पड़ेगा। उसके बाद आप कमांड रन करा के XC SD-WAN इनेबल कराओगे, बिकॉज XC SD-WAN की जो कमांड सेट्स हैं वो आपके XC से अलग हैं थोड़ी। तो मतलब कंप्लीट इंटरऑपरेबिलिटी जैसा कंप्लीट कंपैटिबिलिटी या एकदम मतलब आपका माइग्रेशन अगर आप करते हो वो करते हो तो नहीं है, आपको थोड़ा कॉन्फ़िगरेशंस का बैकअप वगैरह लेना पड़ेगा और रिकॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेस पे करनी पड़ेगी। ओके। These two options will offer only new VS devices, right? Or न्यू legacy? CH वाले पे ना? Yes, yeah, VS हाँ one. हाँ, मतलब जो आपके नहीं, मतलब जैसे iOS 17 है ना, जो आपका iOS XC 17 वर्जन है, ये दोनों ऑफर करता है। 17.2 से है आई गेस कि आप XC SD-WAN XC और XC SD-WAN दोनों आप रन करा सकते हो। तो अगर आपके पुराने राउटर पे भी सपोर्ट है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, नई डिवाइस नहीं खरीदनी आपको। पुराने राउटर में हम लोगों को सिर्फ अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ new बिल्कुल, software आपको क्या, version. हाँ आपको बस केवल क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो आपके पास एक ASR 1000 सीरीज का राउटर है या CSR 1000 है या जो भी आपका आप राउटर यूज करते हो, आप उसकी जो software.cisco.com पे जाके आप बस इतना देख लो कि XC SD-WAN चलता है कि नहीं चलता है और चला पाओ आप। यू डोंट नीड टू परचेज कंप्लीटली न्यू डिवाइसेस। But still, the organization will remove the legacy routers and adding the VH routers. Why they are doing these things? दे विल नॉट एड द VH राउटर्स एनी मोर। VH राउटर्स आपके मतलब स्लोली आपके फिनिश कर ही दिए जाएंगे। आप मतलब ये इवेंचुअली हो ही जाएगा। तो जहां तक रही बात आपके CH की, तो CH अब क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग हार्डवेयर पे चल सकता है, XC SD-WAN है आपके एग्जिस्टिंग हार्डवेयर पे चल सकता है, तो आप चाहो तो उसी हार्डवेयर को रीयूज कर लो, अदरवाइज आप एकदम फ्रेश हार्डवेयर परचेज कर सकते हो। VH आपके जो है मतलब अगर आप न्यू डिवाइस परचेज करते हो तो यू हैव द ऑप्शन टू परचेज द VH, बट इवेंचुअली आप देखोगे कि आपके CH पे ही चीजें चलेंगी। हटाई देंगे सिस्को, VH हटा ही देगा, सेल करना ही बंद कर देगा। Can you explain the VH and CH difference between them? सेम डिफरेंस बस केवल इतना सा है कि आपका एक विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, वहां पे जो सेट ऑफ कमांड्स है वो आपके iOS XC से अलग है। मतलब बस बाकी मतलब आपका जो iOS XC SD-WAN है वो आपका प्योर iOS बेसिस पे, iOS जो आपकी सिस्को की जो क्लासिक CLI कमांड्स हैं उस पे आपको फंक्शंस मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपके XC SD-WAN में मिलेंगे जो VH में नहीं मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिक्योरिटी के फंक्शंस। भाई SD-WAN में सिर्फ VH राउटर ही यूज होगा, राइट? नहीं वो बताया ना, VH और CS दोनों यूज होंगे ना, VH और CH। तो VH नहीं यूज होंगे। VH मतलब आपके जो है स्लोली वो रिमूव कर देंगे, मतलब दे विल इवेंचुअली माइग्रेट टू द CH डिवाइसेस। CH मतलब iOS XC SD-WAN वाली। ओके। VH मतलब हम अभी यूज कर रहे हैं। VH अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, बट सूनर और लेटर दे विल हैव एंड ऑफ लाइफ एंड ऑफ सपोर्ट फॉर द VH डिवाइसेस। आई गेस कुछ के लिए तो अनाउंस कर भी दिया है उन्होंने, कुछ प्लेटफॉर्म्स के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो इवेंचुअली आप देखोगे CH ही रहेगा। तो सर ये जो VH है ये अलग से एक डिवाइस आता है क्या? हाँ, मतलब राउटर ही है वो, कुछ इस तरीके से देखो अलग से एक राउटर आता है क्या विप्टेला का? हाँ, मतलब ये जो VH आपके राउटर्स हैं, ये VH राउटर्स आपके राउटर ही, जैसे सिस्को का राउटर आता है वैसे VH राउटर आता है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये रहा, जैसे नॉर्मल राउटर होते हैं, ये रहे। ओके। तो ये हाँ, ये यूज करते थे, मतलब ये आपके जो राउटर्स हैं, अगर आपको SD-WAN सोल्यूशन चाहिए विप्टेला वाला तो ये राउटर आपको परचेज करने पड़ते थे। जब XC SD-WAN आ गया तो इनको परचेज करने की सच कोई डेडिकेटेड रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप अपने एग्जिस्टिंग हार्डवेयर में XC SD-WAN डाल के SD-WAN का बेनिफिट ले सकते हो। Which Cisco models latest we are using for हाँ, the तो वो आई गेस कि आपके CH ही होंगे ना फिर। हाँ CH एग्जैक्टली, क्योंकि नए में नहीं देगा, मतलब ये आप यूज, क्योंकि देखो इवेंचुअली फिर वो दो कंपनी वाली बात हो जाएगी कि आधा विप्टेला आधा सिस्को, और वो क्योंकि एनीवे सब चीजों को यूनिफाई करके मतलब कैटलिस्ट करके जो पिच कर रहे हैं सब जगहों पे।
In SD-WAN, Viptela, they are using the Cisco devices, for Cisco devices, they are naming as VH router. But VH router is a Cisco. That's हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ समझ गया मैं, बट उसके अंदर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब उसमें भी Okay. दो चीजें हैं, वो उसमें भी दो चीजें हैं, मतलब अभी अब वो हम अगर उसमें पढ़ेंगे, क्या नाम है, राउटर वाले पार्ट में कवर करेंगे, वो VHG बोलते हैं उसको। सिस्को ने जब देखा कि VH जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, तो उन्होंने कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाई, खुद बनाई, ISR सीरीज के फॉर एग्जांपल कुछ राउटर्स है जिनको वो VH बोलते हैं, उनमें विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलता है। okay. Okay. और क्या है, प्लस क्या है, CAs है हमारे पास। Okay. Got it. So basically, we are talking both the same things, but we are differentiated on the basis of the operating system itself. एग्जैक्टली। और सिस्को के पास अब क्योंकि विप्टेला कोई अलग एंटिटी टाइप नहीं है, तो सिस्को अब आपके दोनों चीजों को मैनेज करती है, विप्टेला मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को भी और सिस्को IOSXE SD-WAN को भी। तो उन्होंने खुद ही कुछ ऐसे राउटर बना रखे हैं जिसमें उन्होंने खुद विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है। वो राउटर सिस्को के ही हैं, ISR फॉर एग्जांपल सीरीज के कुछ राउटर्स हैं जिन पे विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है और उसको वो बोलते हैं VH। लेकिन विप्टेला की तरफ से अब कोई डेडिकेटेड आपका ऐसा प्रोडक्ट लाइन आपको एकदम नहीं दिखाई देगी। तो सर जैसे ये CH में था ना, IOSXE SD-WAN 17.2 पे चलता है, हाँ। ऐसे VH में कौन से नंबर पे VH चल रहा है? नॉर्मल है, VH 1000, जैसे अब VH के जो प्लेटफॉर्म्स है उनके नाम ऐसे ही, जैसे VH 1000 सीरीज का राउटर है तो VH 1000 की आपकी आ जाएगी, क्या नाम है, सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। तो इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है IOSXE की तरह से कुछ नाम नहीं है, मतलब VH 1000 है तो VH 1000 सीरीज के लिए आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लो वेबसाइट से, वो कौन से वर्जन का डाउनलोड करते हो, 20.6, 20.7, 20.12, वो फिर आपके ऊपर है। 20 पॉइंट है वो, तो जो आप अगर वो पूछ रहे हो ना नंबर के हिसाब से, राइट, जैसे उसमें 17.2 था, इसमें 20 पॉइंट समथिंग 20.12 20 पॉइंट ऐसा चलता है। ओके। और CH राउटर के मॉडल्स कौन से यूज होते हैं? CH के आपके यही आते हैं, CH के आपके CSR, ISR, ASR, CSR, 3 आपके मॉडल्स हैं। उसमें भी आपके 1100, 4000 सीरीज के कुछ राउटर्स हैं, डेडिकेटेड कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हम राउटर वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ओके। तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। मेन एडवांटेज बस केवल इतना है कि हमें एक एक करके हर जगह से एक एक करके हर एक डिवाइस को इंडिविजुअली मैनेज नहीं करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल वैन के कंपैरिजन में जहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर हम फॉलो करते थे, अब हम एक सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर पे जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इन डिवाइसेस को इंडिविजुअली मैनेज नहीं कर सकते।